Sure, sir. Sure. I'm audible, sir? You are audible now. Okay, thank you, sir. Good afternoon to everyone. My name is Shikha Thakur. I'm currently working as an assistant professor at Arnia University and also working New Way Mushroom Awareness Drive as community outreach volunteer. Welcome to all our second session of the Mushroom Awareness Drive, an initiative by New Way Biotech aimed at spreading awareness about mushroom and their incredible benefits for society. New Way Biotech is a socially responsible and innovative company with a vision to eliminate malnutrition and vitamin D deficiency. We strive to create affordable, accessible, and sustainable biofortified vitamin D foods by prioritizing sustainability and collaborating with local communities and stakeholders. We are dedicated to developing impactful solutions that improve lives. Now we are thrilled to have Mr. Hardik Patni, a core team members of New Way Biotech, with us today. Hardik is responsible for operations uh, and development at New Way Biotech, and he is bring invaluable expertise to the tables. Let's welcome to him as he provides us with a brief overview of New Way Biotech and its initiatives journey. Welcome to Mr. Hardik, sir. Am I audible? Hello. Hello. Yeah. Hello, Shikha. Am I audible? Yes, yes, Asha. My screen is visible. Hello. Yes, sir, yes. Sir. Okay. Thank you, Shikha, for your warm introduction. So let me first brief you with New Way Biotech. So as a New Way Biotech is a pioneering company committed to creating a world where malnutrition is no longer a barrier to human health and well-being. So New Way has come up with an organic and vegan solution using mushrooms to use and produce vitamin D enhanced food products. So mushrooms are essential for their nutritional and medicinal properties. So our mission is to develop and deliver biofortified vitamin D food that are affordable, accessible, as well as sustainable. So through our innovative solutions, we aim to promote healthy living and prevent malnutrition, especially in underprivileged communities. So the new biotech focuses on problems related to vitamin D deficiency. So vitamin D deficiency is a widespread health concern affecting millions globally. So to tackle this issue, we have developed an innovative low-cost electronic instrument that utilizes a non-chemical based approach, and this instrument applies a specific treatment protocol to mushrooms, effectively enhancing vitamin D absorption. So New Biotech has vitamin D treatment. This mushrooms are transformed into diverse range of food Hardik, please, your audio is not needs perfect. of people. Am I audible now? Hello? No, sir. Hello? Your voice is breaking. Am I audible now? Yeah. Okay, okay. So, should I continue from this vitamin D concentrator? No. Yeah. Okay. So we have the Newer Biotech has this patented technology, and we have come up with this low. Uh, we have developed an innovative and low-cost electronic instrument that utilizes this non-chemical based approach to enhance the vitamin D levels into mushrooms. So this instrument applies a specific treatment protocol
to mushrooms, effectively enhancing their vitamin D levels. And post treatment, these enriched mushrooms are transformed into a diverse range of fortified food products tailored to meet the needs of various consumer segments. So our approach ensures that these products are not only to a particular consumer section, but to all the people who are really vitamin D deficient. So these products are not only nutrient dense, but also convenient for daily consumptions. So Neue Biotech has significant societal impact, providing an accessible solution to address nutrient deficiencies and improve public health as well. So why Neue Biotech? So we provide vegan source for vitamin D and ready to use products for daily consumption. We also provide services like mushroom cultivation training and workshops, fresh mushroom and spawn culture. Also, we have also come up with this technology transfer for this vitamin D concentrator. And our premix is one of the major product which we are focusing on. That is the vitamin D enhanced premix. And as a CSR initiative, we have launched the campaign for mushroom awareness drive. So you are here for this mushroom awareness, one of the mushroom awareness drive campaign, and we are passionate about promoting mushrooms as a sustainable nutritious food source. And we are encouraging people to join us also for this awareness drive, as well as for volunteering and attending events and spreading the word together, so that we can empower the communities for better and greener future. So stay tuned for more updates, and let's get connected. So thank you, Shifa, and over to you again. Okay, thank you, sir. Thank you, sir, for introductions and awesome work of New Way Biotech. Now, moving ahead, the today's session, the Mushroom Awareness Drive launched in December 2024 in collaboration with New Way Biotech. This drive seeks to educate people about the importance of mushrooms to nutrition, health, and sustainability. Our first session focused on the basis of mushroom benefits, cultivations, and their importance, conducted by Dr. Sachin Chauhan. It was a great success with 77 participants from across India, include many interested learners. Today we are excited to present the second session of mushroom morphology for identifying wild mushrooms, which has granted 214 plus registrations from diverse regions. We are honored to have Vyam Bhatt with us today. Vyam journeys with fungi vegan in the Himalayas, where he was introduced to the fascinating world of mushrooms. His passion grew as he delved into foraging, identification, and cultivations. As the former head of cultivation and Nevido, Vyam gained extensive expertise in growing medicines and gourmet mushrooms. Beyond cultivations, Vyam is deeply curious about fungi's role in the sustaining life and is committed to exploring initiatives way to work with these remarkable organisms. He is also one of the founding members of Shroom Shava and is currently preparing to establish a mushroom cultivation facility. Today's session lead to Vyam Bhatt. Mr. Vyam Bhatt promises to provide valuable insights into the morphology of mushroom, equipping us with knowledge to identify and mushrooms and understand their ecology and social importance. Let's join hands in welcome Vyam and get ready for an engaging and insightful session. Vyam, sir. Thank you so much, Shikha, for that introduction. Is my voice audible? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and resume presenting.
can you see the presentation also? All right, all fine. Yes, sir. No. Okay, I can start then, right? Yeah, Yes. you can. Okay, thank you so much, Niue, for having me here. It is very exciting to always share the mushroom knowledge that I have gathered from some time, like being a cultivator and also being happily foraging in forests or places where mushrooms are there. So today's session is mainly about how do you identify a mushroom. Okay. So, first question to understand this entire thing is, what is a mushroom? So, mushrooms are technically the fruiting bodies of the mycelium. Okay. So, if you can see the red pointer, right? So, I can use it to just show you the red pointer. Sagar, is it visible? Yes, sir, yes. Yes, yes. Okay. Okay. So, see on the screen, you can see that this is a mushroom, and you can see root-like structures which are actually looks like the roots of the mushroom. So these are the mycelium, or the mycelial threads, or the hyphae, right? And when the hyphae has colonized enough and it is strong enough to produce mushrooms, it will make a fruit body, and that fruit body is essentially called a mushroom. So you can compare the same thing like an apple on an apple tree. Okay, like there is the entire tree of the apple. So the tree is always there, but the apple always comes in a particular season, right? So similarly, mycelium is present in the ground, in the wood log, लकड़ी के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, और अलग अलग जगह पे होता है. कहाँ कहाँ मिलता है वो भी हम देखेंगे. And then that fruit body comes out when the conditions are right. So अगर आप कल्टीवेशन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर एक्सचेंज कितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. तो सीजनली हर एक मशरूम का एक टाइम फ्रेम होता है जहां पे वो आपको देखने को मिलेगा. एंड लाइक जैसे कोई भी फ्रूट होता है, जैसे एप्पल होता है, उसका रोल होता है टू मेक सीड्स सो दैट उसका मतलब जनरेशंस आगे बढ़ती रहे. सिमिलरली मशरूम्स का द रोल इन नेचर इज टू स्प्रेड स्पोर्स. ओके, सो बेसिकली अ मशरूम इज अ फ्रूटिंग बॉडी. सो बिफोर वी गेट इनटू ऑल दिस, मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं कि मशरूम्स एडिबल है कि नहीं और ये पॉइजनस है कि नहीं. तो देखो, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट, एंड like how Niue is also trying to make the best use of mushrooms by getting them rich by vitamin D and then providing them for the people to eat. Similarly, we also look forward to eat mushrooms, right, and to gain maximum medicinal benefits from it, or even to fill our tummy if we are hungry. बट उसके साथ साथ हमारे दिमाग में और हमारे कल्चरल बिलीफ्स की वजह से ना हमें बहुत सारे गलत चीजें बोली गई है. जैसे कि मशरूम में भी पॉइजनस इफ इट इज रेड इन कलर. तो अगर आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा है राइट साइड पे, तो ये सारे लाल कलर के मशरूम्स है ना, और ये सारे रसुला स्पीशीज है. ठीक है, तो रसुलाज आर एक्चुअली वेरी मच एडिबल और बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं. और ये जनरली मतलब ये माइकोराइजल मशरूम होते हैं. वो माइकोराइजल क्या होता है उस पर भी हम आएंगे. बट द पॉइंट इज कि आप कोई भी कलर से मशरूम के बारे में मशरूम पॉइजनस है कि नहीं ऐसा नहीं कह सकते. फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब कुकुरमुत्ता बोला जाता है नॉर्दर्न इंडिया में काफी सारी जगह पे. तो कुकुरमुत्ता का ट्रांसलेशन होता है जहां कुत्ते ने सुसु या टॉयलेट किया है वहां मशरूम आएगा. तो इस तरीके से कल्चरली ऑल्सो इट हैज बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड उसको जो वैल्यू देता है वो नेचर में उग के, वो उसको वैल्यू इंसान को दिखती नहीं है क्योंकि ऐसा नाम दे दिया गया है. दूसरा है इफ इट्स वाइट इट विल बी एडिबल. तो अभी मार्केट में तो हमें बटन मशरूम देखने को मिलते हैं तो सारे वाइट होते हैं,
पर टेक्निकली बटन मशरूम वाज नॉट ऑलवेज अ व्हाइट मशरूम. ओके, इट वाज मेड व्हाइट सो दैट पीपल कैन एक्सेप्ट इट. पर उसमें ज्यादा नहीं जाते. ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर वो व्हाइट है तो एडिबल है और व्हाइट नहीं है तो एडिबल नहीं है. इनफैक्ट अमेनिटा फेलॉइड्स करके वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस मशरूम्स है, जिसको खाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है. यू कैन ऑल्सो डाई. और मैं लगभग 2021 से फॉरेजिंग कर रहा हूँ, मशरूम्स के बारे में सीख रहा हूँ, जंगल में जाके खुद कल्टीवेट भी कर रहा हूँ, और मैंने सारी चीजों को मेरे हाथ से छुआ है. ठीक है, तो काफी लोग को डर लगता है कि मशरूम को छू सकते हैं कि नहीं छू सकते. आज तक मेरे एक्सपीरियंस में आप हर एक मशरूम को छू सकते हैं. ठीक है, तो मैंने ये ऊपर लिखा है बट वी आर अनदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस और होमो सेपियंस. तो मतलब होमो सेपियंस, मैंने द रीजन व्हाई आई पुट इट इन दिस स्लाइड इज आल्सो दैट वी नो दैट जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ना, वैसे हर एक मशरूम का नोमेनक्लेचर होता है जीनस और स्पीशीज का. तो जैसे होमो सेपियंस में होमो इज द जीनस, तो वी ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू होमो एंड देन आवर स्पीशीज इज सेपियंस, तो होमो सेपियंस होता है. तो वैसे ही हर एक मशरूम का भी साइंटिफिक नेम होता है, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. उसका रीजन भी हम आगे जाके शेयर करेंगे. तो बेसिकली नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कलर नहीं है हमारे पास, ठीक है, और ना ही हमारे पास मतलब कोई डायरेक्ट नजर से देखने का रास्ता अभी तक तो पता चला नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें. सो द एडिबिलिटी ऑफ अ, तो अभी आप अगर पूछोगे कि ये मशरूम एडिबल है कि नहीं, तो वो एडिबिलिटी तो मुझे तभी पता चलेगी ना जब तक मैं इसको करेक्टली आईडी नहीं कर देता. So hence this slide says the edibility of a mushroom can be figured out rightly after identifying it. जब तक उसको आप आइडेंटिफाई नहीं करते ना जीनस और स्पीशीज लेवल पे, मतलब अगर मैं होमो सेपियन हूं तो होमो सेपियन, जब तक सेपियन तक आइडेंटिफिकेशन नहीं आ जाता ना, तब तक आप उसकी एडिबिलिटी कंसिडर आपको करनी नहीं चाहिए. सिर्फ अगर होमो सुन लिया ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये एडिबल होगा. ठीक है, देयर आर एडिबिलिटी प्रोटोकॉल्स दैट एग्जिस्ट बट दे कैन टर्न रिस्की. ठीक है, एडिबिलिटी प्रोटोकॉल बेसिकली इज कि काफी लोग वाइल्ड में जाके ना मशरूम का एक पीस लेके थोड़ा चख के देखेंगे, पर अगर उस चीज को भी गलत तरीके से कर लिया ना तो जंगल में ही आपको कॉन्स्टिपेशन या गलत चीजें हो सकती है. तो मैं वो एडवाइस नहीं करूंगा, बट देयर इज अ मच बेटर वे to work this out. So the best and the easiest way is to get a positive ID. Positive ID मतलब correct identification, and that can come on the field only if one knows how to observe and understand the mushroom morphology, and then putting those pieces of the puzzle to reach to the ID मतलब identification. So that is what generally people who reply to your ID requests do. मतलब जैसे कि आप किसी Facebook ग्रुप पे हो या WhatsApp ग्रुप में हो जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट है, तो वो मशरूम की मोर्फोलॉजी के हिसाब से आपको बताएगा. तो ये मोर्फोलॉजी बोल रहा हूँ. मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी इन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. जैसे कि स्कूल में हम कोई डायग्राम बनाते थे साइंस के लेक्चर में, जैसे ब्रेन का डायग्राम बनाते थे, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, फिर स्कल और फिर जो लिक्विड होता है वो सारा हम लोग उसको लेबल करते थे ना. तो दैट वाज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन. वैसे सिमिलरली मशरूम की भी मोर्फोलॉजी होती है. एंड बिकॉज टुडेज सेशन इज ऑन वाइल्ड मशरूम आइडेंटिफिकेशन, तो हम लोग उसकी मैक्रो मोर्फोलॉजी पे ही देखेंगे, मतलब ऑल दोज थिंग्स विच आर विजिबल टू योर आई. ठीक है, this is not about microscopy or DNA sequencing. This session is completely based on macromorphology, जो हमारी आंख को दिखता है, क्योंकि शायद जंगल में आप माइक्रोस्कोप या DNA सैम्पलिंग के लिए जो भी आपके इक्विपमेंट है वो ले नहीं जा सकोगे. ठीक है, इज इट गोइंग फाइन? कैन आई आस्क किसी को सब ठीक चल रहा है ना प्रेजेंटेशन? Yes, all is going well. Okay, thank you. So now let's start. Let's get into it कि how to look at a mushroom for identification purpose. ठीक है, तो generally when we think about mushrooms we see that it is an umbrella like structure. Okay,
तो ये जो छतरी हमें दिखती है वो छतरी के एक एक पार्ट का सिग्निफिकेंस रहता है, ठीक है। तो द कैप इज ऑलवेज नोन एज द पिलियस, उसको नॉर्मल सिंपल भाषा में कैप बोल दो, ठीक है। फिर कुछ कुछ मशरूम के ऊपर आपको ऐसे बिट्स दिखेंगे, तो उसको वो कभी कभी यूनिवर्सल वेल रेमनेंट्स होते हैं। गिल्स होते हैं उसके अंडर साइड पे, तो गिल्स जो होते हैं वो स्पोर्स रिलीज करते हैं, तो गिल्स आर नोन एज लैमेले आल्सो इन अ मोर टेक्निकल लैंग्वेज। उसके बाद कुछ मशरूम्स में ना इधर रिंग होती है, उसको स्कर्ट भी बोला जा सकता है और टेक्निकली उसको एनालस बोलते हैं। उसके बाद ये जो स्टेम होती है ना उसको स्टाइप बोलते हैं। तो जैसे प्लांट्स के लिए हम स्टेम यूज करते हैं शब्द, मशरूम के लिए जनरली स्टाइप शब्द यूज होता है। और कुछ मशरूम्स में यहाँ पे नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वोल्वा कह सकते हैं, और ये लेबल नहीं किया हुआ है, विच इज द माइसीलियम, विच इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो पेड़ और एप्पल था, तो जो पेड़ होता है तो वो पेड़ का पेड़ माइसीलियम से मतलब समझने के लिए जान सकते हैं। So why is mushroom identification an important and also something which is very interesting to do, and also important because there are 20,000 plus species of mushrooms and people are still finding them with the advancement of technology। जैसे पहले तो माइक्रोस्कोप भी नहीं था, तो बहुत सारे मशरूम ना एक ही जीनस में आए, फिर माइक्रोस्कोप आया तो उसमें से सटीक डिटेल्स दिखी, तो एक से दो तीन ज्यादा जीनस हुए। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग आया तो और काफी सारे जीनसेस बन गए। तो ऐसे देखा जाए तो काफी सारे मशरूम रिवाइज भी हो रहे हैं उसके नोमेनक्लेचर में, और काफी नए नए डिस्कवर भी हो रहे हैं। एंड बिकॉज मशरूम्स आर वेरी क्लोज टू बीइंग, दे आर यूकैरियोट्स नो डाउट, बट द पॉइंट इज कि उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत जल्दी आती है, तो नए नए मशरूम्स भी आ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। इनफैक्ट इंडिया से काफी सारे पेपर्स आए लास्ट 10 साल में नए मशरूम्स को लेके, जैसे इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। तो नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ मशरूम ऑन देयर ओवरऑल स्टैचर एंड शेप। तो जनरली मशरूम्स काफी सारे टाइप के होते हैं, ओनली छतरी टाइप नहीं होते। तो ये जो छतरी टाइप होते हैं ना उसको हम अगारिक बोलते हैं, ठीक है। फिर देन देयर आर पॉलिपोस, देयर आर पफ बॉल्स, कोरल मशरूम्स होते हैं, जेली मशरूम्स होते हैं, बोलीड्स होते हैं, स्टिंकॉन्स होते हैं, क्रस्ट फंगाई होती है, क्लब शेप्ड एंड अदर वियर्ड वंस। मतलब वियर्ड वंस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसका एग्जैक्टली कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। कुछ मशरूम इतने अलग अलग टाइप के हैं कि उसको आप एक पॉलिपोर या पफ बॉल ऐसा बोल नहीं सकते हो, और कप फंगाई होते हैं। तो मैं आपको पिक्चर्स के साथ बताऊंगा कि ये सब क्या है। तो we'll start with agaric or the gilled mushrooms, okay? And today's presentation will generally be about agaric and gilled mushrooms because they are the easiest ones to spot, and सबसे ज्यादा लोग जब मशरूम के बारे में सोचते तो यही छतरी वाला दिमाग में आता है, तो हम ज्यादा उस पर ही बात करेंगे, ठीक है जी। So you see, ये तीनों काफी मशरूम की अलग अलग मोर्फोलॉजीज है, ठीक है। मोर्फोलॉजीज है मतलब उसके स्ट्रक्चर्स काफी डिफरेंट है। ये तीनों के तीनों मशरूम ना गुजरात से मैंने लिए थे बाय द वे। तो लुकोकॉपरेनस क्रिटेशियस है जो मुझे साउथ भोपाल अहमदाबाद में मिला था, ये जिम्नोपाइलस बरोड़ा से मुझे मिला हुआ है, और ये सथायरेला तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के टेरेस पे उग रहा था आंबली भोपाल में अहमदाबाद में। तो मशरूम्स तो हमारे आसपास हमेशा रहते ही हैं जब भी उसकी सीजन हमें मिलती है। एनीवेज, agaric mushrooms are these umbrella type looking mushrooms. Then we have polypores. तो polypores आपने पेड़ पे देखा होगा, ब्रैकेट लाइक मशरूम्स आते हैं। जनरली गैनोडर्मा काफी फेमस हो गया है लास्ट 25-30 इयर्स में। तो जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, इट इज अ नेचुरली ग्रोइंग गैनोडर्मा। अगेन दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम बरोडा। और ये राइट साइड पे जो है ये है फॉर्मिटॉप्सिस। सो फॉर्मिटॉप्सिस, दिस पिक्चर इज फ्रॉम हिमाचल। यू कैन ऑल्सो सी द पाइन ट्रीज बिहाइंड। तो you can make out the terrain is a different terrain. तो ये फॉर्मिटॉप्सिस है। ऑल these polypores, basically polypore क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो अंडर साइड होती है
वहां से मशरूम अपने स्पोर्स रिलीज करता है और वो बहुत सारे होते हैं. वील गेट इनटू द डिटेल क्योंकि थोड़ा पॉलीपोर पे भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ. उसके बाद आता है जेली टाइप मशरूम्स. तो अगर आपने कभी एशियन क्विजीन देखा है तो आपने एशियन क्विजीन में ये मशरूम्स देखे होंगे. लेफ्ट साइड पे जो है ऑरिक्युलरिया ऑरिक्युला जुड़े, एंड ये इसका ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है. ये मुझे केरला से लेके गुजरात में भी मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी मिले हैं, और मैं मालदीव्स गया था वहां पे भी मिले. तो ये जो मशरूम है वो हर एक जगह पे मिलता है, एंड इट्स एडिबल मशरूम, और इसमें काफी मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं. और ये राइट साइड पे ना एक्सिडिया स्पीशीज है. नाउ अभी मुझे आप लोग का ध्यान इस बात पे लाना है कि अगर मैं इसी मशरूम को ना थोड़े डिस्टेंस से देखूंगा तो दूर से तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे. ठीक है, तो काफी सारी बार ना ये दिक्कत आती है कि जब आप एक मशरूम का फोटो अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी भेजते हैं ना, तो उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके जो शेप्स होते हैं वो बहुत ध्यान से आपको कैप्चर करने पड़ते हैं फोटोग्राफ में, वरना एक आइडेंटिफायर भी आपको बोल नहीं पाएगा कि ये कौन सा मशरूम है. And this example is there कि auricularia and exidia look so similar, and auricularia is a choice edible mushroom, पर exidia लोग नहीं खाते. तो ये बात है. फिर कोरल मशरूम्स आते हैं. So these are coral mushrooms. As the name suggests, पानी में जैसे कोरल होते हैं तो वैसे दिखने वाले मशरूम है, इसलिए कोरल मशरूम्स है. कोरल मशरूम में भी काफी सारे हैं एडिबल स्पीशीज, पर मेरी एक्सपर्टीज उतनी है नहीं इनमें इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा और कभी कभी मुश्किल हो जाता है. पर ये जो बीच में फोटो है क्लैवुलेनोप्सिस, दिस इज वेरी फेमस ऑल थ्रू द वेस्टर्न घाट बेल्ट. मैंने केरला से लेके मुंबई से लेके इसको कर्नाटक सब जगह पे देखा है. और ये क्लवेरिया स्पीशीज है. ये पिक्चर इज फ्रॉम द इंटरनेट, बट आई थिंक क्लवेरिया इज आल्सो फाउंड इन द वेस्टर्न घाट बेल्ट. उसके बाद आते हैं पफ बॉल्स. तो पफ बॉल्स आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. पफ बॉल्स आर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ गैस्ट्रॉइड फंगाई, मतलब ऐसे बॉल जैसे होते हैं. और तो इनका स्पोर रिलीज ना जब भी ये फुल्ली मैच्योर्ड पफ बॉल नहीं है तो लाइकोपोडॉन पोर्लाटम नाम है. दिस इज एन एडिबल पफ बॉल. ओके, बट पफ बॉल्स आर ऑलवेज नॉट एडिबल. इट डिपेंड्स ऑन कि उनकी लाइफ में वो लोग कहाँ पे हैं. तो आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम नो वो जो पफ बॉल होता है वो एडिबल से इनएडिबल हो जाता है, एंड रादर पॉइजनस भी हो जाता है वो. तो उस पे भी मैं आऊंगा क्योंकि मैंने पफ बॉल पे भी थोड़ा सेगमेंट रखा है. और ये अर्थ स्टार मशरूम काफी फेमस है. ये मशरूम भी अगर आपको पता है तो उसका नाम है जियास्ट्रम स्पीशीज. तो आप ये भी देखना, ये प्रेजेंटेशन में ना मैंने मशरूम्स के साइंटिफिक नेम्स रखे हैं. तो लाइकोपोडॉन पोर्लाटम, तो लाइकोपोडॉन इज द जीनस एंड पोर्लाटम इज द स्पीशीज नेम. तो ये हो गए पफ बॉल्स. तो अब देख रहे हो सारे मशरूम्स हमने जो देखे, अगैरिक्स देखे तो ये छतरी टाइप दिखते हैं. ब्रैकेट्स है पॉलीपोस, दे आर जनरली साइड फ्रूटिंग ऑन ट्रीज. जेली टाइप मशरूम्स है, इसको आप इनको साथ विगल कर सकते हो. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये जो ऑरिक्युलारिया है ना इसको वुडियर मशरूम बोलते हैं. तो मैं जब मलाना गांव में था हिमाचल प्रदेश में, तभी ये एक मशरूम मुझे एकदम ईयर शेप का मिला था. तो मैं बच्चों को डरा रहा था कि देख भाई मैंने तेरा कान निकाल दिया ऐसे करके. तो वो डर भी रहे थे छोटे छोटे बच्चे. तो वुडियर मशरूम, जेली आते हैं, कोरल मशरूम्स, पफ बॉल्स. फिर आते हैं बोलीट्स. तो बोलीट्स ऑल्सो लुक्स वेरी सिमिलर टू द अम्ब्रेला अगैरिक, बट देयर इज अ डिफरेंस. तो पहली बात तो बोलीट है ना पूरी अलग फैमिली ऑफ मशरूम्स ही है. ठीक है, और उसके बाद जो अंडर साइड होता है ना बोलीट का, ये जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, उसमें काफी सारे पोर्स रहते हैं. तो ये पॉलीपोर भी नहीं है, ये अगैरिक भी नहीं है. इट इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ मशरूम्स कॉल्ड बोलीट्स. और बोलीट्स का भी अभी डीएनए टेस्टिंग से काफी रिवीजन हुआ है, और करीबन मेरे हिसाब से 10 से 15 जीनसेस थे, वो अभी करीबन 80 जीनसेस हो गए. Around 80 genuses are there, and yeah, it is very difficult, and there are very less people in the world who can identify boletes nicely or even precisely. जैसे positive ID ना boletes का देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है काफी जगहों पे. फिर आते stinkhorns. तो bridal whale mushroom is a very famous mushroom जो extreme right पे है यहाँ पे.
बाकी कलर के टाइप के भी स्टिंकॉर्न रहता है। ये बैंगलोर से मुझे मिला था, जिसका आप देख सकते हो कि इसका जो नेट है यहाँ पे इट इज ऑरेंजिश, येलोइश ऑरेंज कलर का है। तो स्टिंक हॉर्न्स में को उसमें स्टिंक शब्द क्यों जुड़ा? ठीक है, हॉर्न्स तो ठीक है, हॉर्न्स जैसे दिखते हैं, पर स्टिंक क्या करता है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो हेड होता है ना, ये हेड के ऊपर एक स्टिकी गू जैसा दिख रहा होगा आपको, उसको ग्लीबा बोलते हैं। तो स्टिंक हॉर्न्स के जो स्पोर्स होते हैं ना आर अ पार्ट ऑफ दिस स्टिकी थिंग कॉल्ड द ग्लीबा, और इसकी स्मेल से ना इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स विल कम एंड सिट ऑन दिस ग्लीबा एंड दैट इज हाउ द स्पोर्स आर स्प्रेड। तो थोड़े दिन बाद अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा ग्लीबा हट जाएगा, क्योंकि ये उड़ जाता है फ्लाइज पे चिपक के, और ये पूरा ना ऊपर का कलर ही चेंज हो जाएगा। इट समटाइम टर्न्स इनटू वाइट और पिंक डिपेंडिंग ऑन द मशरूम, उसके हिसाब से। तो दैट ऑल्सो बिकम्स एन आइडेंटिफिकेशन फीचर। Lysurus gardneri, this is from Karnataka again. And the thing about stinkhorns is कि वो भी एक egg like structure से निकलते हैं। तो आपको ये वाले इसमें इसके बेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक sac like structure है, वोल्वा। तो stinkhorns हो गए। फिर कप फंगाई है। कप फंगाई आर नॉट बेसिडियोमाइसीट्स, आर एस्कोमाइसीट्स। अगर आप काफी टेक्निकली घुसे हुए हो मशरूम्स में तो आपको एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट समझ में आएगा। बेसिकली इट इज द स्पोर बनाने का जो मैकेनिज्म होता है ना मशरूम का, उसके हिसाब से एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट में डिफरेंशिएशन हुआ है। तो कप फंगाई या एस्कोमाइसीट्स। तो ये है सार्कोसाइफा और ये है कोकिना ट्राइकोलोमा। तो काफी लोग ना कप फंगस को जेली फंगस के साथ कंफ्यूज कर देते, क्योंकि कुछ कप्स ना जेली को भी इमिटेट करते हैं। तो ये जो सब नाम है ना, कप, जेली, these are not exactly scientific names. These are more for us to understand and place them in the right place. बाकी scientifically तो आपको scientific nomenclature यूज करना चाहिए, जैसे कोकिना ट्राइकोलोमा हो गया। So ये तो हो गए मशरूम के टाइप्स। अभी let us understand कि ecology में what is the different ecologies, habitats where these mushrooms would be there, right? तो mushrooms prefer a lot of different substrates, and अगर आप एक कल्टीवेटर हो तो आपको मालूम है कि आपका मशरूम जनरली ना लिग्निन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज का मिश्रण को खाना पसंद करेगा। अगर आप ऑयस्टर उगा रहे हो स्ट्रॉ पे या सॉडस्ट पे, तो उस हिसाब से लिग्निन सेल्यूलोज वाला है तो वो हो गया सैप्रोफाइट, राइट? तो यहाँ पे सैप्रोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं। On the left side you can see a mushroom growing on wood, लकड़ी पे उग रहा है, और उसका नाम है Coprinellus section domestici। तो अगेन जब भी मशरूम्स का पिक्चर ले रहे हो तो जूम इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा लिया हुआ पिक्चर है, और इसके ऊपर आप ये जो इसके ऊपर जो आपको थोड़े छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं ना कैप के ऊपर, तो उसका कलर भी है एक डार्क ब्राउन, ठीक है? दिस डार्क ब्राउन कलर इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन फीचर, वरना मैं इसको कॉप्रिनेलस ही बोलूंगा, मैं सेक्शन डोमेस्टिकाई बोल ही नहीं पाऊंगा। पर क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया है कि इसका जो ये बिट्स ऑफ माइसीलियम है उसको वेलम भी बोलते हैं। तो वेलम है, डार्क ब्राउन वेलम है और काफी बड़ी है साइज में। तो ये कॉप्रिनेलस सेक्शन डोमेस्टिकाई है एंड इट प्रेफर्स वुड। फिर काफी मशरूम्स होते हैं जो डंग पे पैदा होते हैं, एलिफेंट डंग, राइनो डंग पे पैदा होते हैं, हॉर्स डंग में भी शायद होते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सच डंग लविंग मशरूम्स आल्सो, एंड उसमें से एक है डेकोनिका कॉप्रोफिला। कॉप्रोफिला नाम से आपको कॉप्रो जो शब्द है, कॉप्रो मतलब डंग से रिलेटेड होता है, तो दिस डेकोनिका कॉप्रोफिला उसको वैसे ही नाम मिल गया। So a lot of scientific names also have an understanding of where they are growing or what is the color of that mushroom. फिर हमने डंग देखा, वुड देखा, फिर कुछ मशरूम होते हैं जो लीफ लिटर पे पैदा होते हैं, जैसे मेरास्मियस कैपिलारिस है। तो ये भी काफी वेस्टर्न घाट्स में काफी मिलते हैं।
काफी मशरूम्स होते हैं जो लाइव ट्री पे पैदा होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सैप्रोफिटिक है तो मतलब डेडवुड पे पैदा होगा. दे कैन ऑल्सो ग्रो ऑन लाइव वुड, लाइव ट्रीज. एंड उसका बिगेस्ट एग्जांपल है गैनोडर्मा मशरूम. फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ सबस्ट्रेट सिलेक्शन है जिसको बोलते हैं एंटोमोपैथोजेनिक. तो एंटोमोपैथोजेनिक को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ इस शब्द को, जो इतना लंबा शब्द है एंटोमोपैथोजेनिक, इसका मतलब क्या होता है? एंटोमो मतलब इट इज रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, एंड पैथोजेनिक विच इज द सेकेंड हाफ मतलब उस पे डिजीज कॉजिंग. तो इंसेक्ट्स पे डिसीज की तरह ये आता है इंसेक्ट में, और इंसेक्ट का सिस्टम ओवरटेक करके वो इंसेक्ट पे ग्रो होता है. तो गिबेलुला इज अनदर एग्जांपल. ये हमें वायनाड केरला में मिला था. तो ये स्पाइडर के ऊपर एक्चुअली मशरूम पैदा हो गया. फिर कुछ मशरूम्स होते हैं जो सॉइल एज अ सबस्ट्रेट प्रेफर करते हैं. तो जैसे अगैरिकस बाइस्पोरस है, वो भी आपको नेचुरली सॉइल में मिलेगा, जो आपका बटन मशरूम है जो मार्केट में मिलता है. दिस इज अ हाइग्रोसाइबी विच वाज फाउंड इन वायनाड. ठीक है. अभी सॉइल हमने देखा, हमने डंग देखा, हमने वुड देखा, हमने लीफ लिटर भी देखा. क्या आपको मालूम है टर्मिटोमाइसिस के बारे में, विच इज अनदर मशरूम विच ग्रो स्पेसिफिकली विद द माउंड्स ऑफ टर्माइट. तो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये मशरूम आ रहा है, और ये जो नीचे है ना, ये फंगल कोम्स है. तो ये कोम्स, फंगल कोम्स एक्चुअली कैसे बने? तो ये टर्माइट का कॉलोनी है जिसमें टर्माइट इज एक्चुअली फार्मिंग दिस फंगस. तो फंगल माइसिलियम जब काफी हो जाता है तो उसमें से मशरूम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन योर ऑयस्टर बैग, राइट? तो वैसे ही टर्मिटोमाइसिस ग्रोज थ्रू दीज टर्माइट्स. तो अभी भी टर्मिटोमाइसिस आई थिंक अभी तक भी किसी ने ग्रो नहीं हो पाया है. काफी रिसर्च चल रहा है. रीजन बीइंग दैट टर्मिटोमाइसिस आर वेरी हाई इन प्रोटीन and are very full of nutritional benefits, but they can only be cultivated right now by termites in their termite mounds. तो the interesting story in this is कि termite जब बाहर जाती है माउंड के और वो लकड़ी ढूंढती है, और वो लकड़ी वो खाती है, पर मतलब खा के उसके पेट तक चली जाती है. फिर वो माउंड के अंदर आएगी और जहां फंगस का माइसिलियम Speaker will rejoin you. Please wait for a few minutes. Meanwhile, you can type your questions into chat box. हेलो, सॉरी वो मेरा लैपटॉप बंद हो गया. आई एम सो सॉरी. क्विकली आई विल स्टार्ट दिस. आ गया वापस. इज इट विजिबल? Yes. ओके ओके. हाँ, तो हम टोमेटोमाइसिस पे थे.
तो टर्मिटोमाइसिस का जो आई थिंक वो टर्माइट ने खा लिया था ना वुड को. Yes. हाँ, तो टर्माइट ने जब वुड को खा लिया तभी वो टर्माइट उसके माउंट के अंदर जाएगी एंड wherever the mycelium of the termitomyces is present वहां पे जाके उस लकड़ी को उल्टी करती है. तो उल्टी जब होता है तभी उसके जो ये दिस इज द साइंटिफिक फाइंडिंग्स कि उसके टर्माइट के जो गट में जो बैक्टीरिया और जो मिश्रण रहता है उसका उससे वो वुड स्टेरिलाइज हो जाता है या पैस्चराइज हो जाता है. इन शॉर्ट क्लीन हो जाता है एंड इट इज रेडी फॉर द माइसीलियम टू टेक ओवर दैट वुड. तो ऐसे करके स्लोली वो माइसीलियम कॉलोनाइज होके लकड़ी में स्प्रेड होता है एंड वन डे फाइनली व्हेन देयर इज इनफ माइसीलियम अ मशरूम पॉप्स आउट एंड वी forage it as termitomyces. So that is how termitomyces is made by nature and by termites. उसके बाद एक एसोसिएशन आता है पैरासिटिक एसोसिएशन. तो ट्रमेला मशरूम है, अगर आपने ये भी एक जेली टाइप मशरूम है, तो ये एग्जैक्टली लकड़ी पे ऐसे ग्रो नहीं हो जाता. दिस नीड्स अ हाइपोक्साइलॉन. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है ना उसके बाजू में ये बम्पी ब्लैक कलर के आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे. तो ये हाइपोक्साइलॉन मशरूम है जो लकड़ी को खा रहा है which is decomposing the wood, and from that decomposed wood the tremella mushroom spores will come sit on it and उसमें से फिर tremella mushroom आता है. तो this tremella mushroom is great for sleep, it's great for skin, और China is world's leading producer in growing this particular mushroom and इसके बहुत सारे medicinal benefits है, but it is a parasitic mushroom. तो parasitic association is also a type of association we see when we discuss substrates. उसके बाद सबसे lovely lovely इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि the entire story of where mushrooms are supporting the ecosystem सबसे ज़्यादा I think it is this association which is playing, then that is called the mycorrhizal association. मैंने आपको बोलीट्स दिखाए पहले, उसके पहले सेकंड स्लाइड में वो लाल कलर के मशरूम दिखाए थे जो थे रसुला ना, ये सारे मशरूम्स माइकोराइजल स्पीशीज है. तो माइकोराइजल स्पीशीज आर मोर फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स जहाँ पे सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है ना इट इज नॉट एज रिच एज द ट्रॉपिकल एरियाज. तो वी आर बीइंग एन इंडियन वी आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट जोन्स. तो हमें काफी सारी बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है. तो लगभग हर एक टाइप का मशरूम हमको इंडिया में मिल सकता है, ये मैं मानता हूँ. तो माइकोराइजल मशरूम्स जो होते हैं उनका बेसिकली व्हाट इज द सिनेरियो, हाउ डू दे हेल्प अ ट्री और हाउ डज अ ट्री हेल्प देम. तो ट्री के रूट्स तो एक लिमिट तक ही, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्री और माइसीलियम दिखाया उसमें, तो ट्री के रूट्स तो एक जगह से ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते. तो what the mycelium does is कि mycelium तो घूमता रह सकता है आजू बाजू. mycelium can go in search of particular nutrients elements in the soil and it can take back the mycelium also and focus energy in some other direction. तो वो बढ़ता रहता है. तो tree roots और fungal mycelium ने एक business partnership बनाई और ऐसा बोला कि पेड़ से हम लोग शुगर्स लेंगे थ्रू द रूट्स और जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो मिनरल्स है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज ना माइसीलियम प्रोवाइड करेगा ट्री को. तो ये धंधा चालू किया उन लोग ने और ऐसे करके ना पूरे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम्स मतलब एक दूसरे के साथ नेटवर्क में. So that is one amazing association and it is called the mycorrhizal association. अभी काफी सारे मशरूम्स माइकोराइजल रहते हैं, जैसे कि बोलीट्स हो गया, रसुला हो गया, शैंट्रेल्स हो गया. और even though we talk about growing mushrooms and cultivating mushrooms, the most tastiest mushrooms are all these mycorrhizal mushrooms and they cannot be cultivated. They can be cultivated, but for that you need an entire ecosystem first. तो मुझे किसी दोस्त ने बोला था who is also mushroom enthusiast, तो उसने बोला था कि जापान इतना एडवांस्ड है ना कि जापान has already started growing forests so that they can start growing mycorrhizal mushrooms there.
क्योंकि ये जब पेड़ करीबन 20 से 25 से 30 साल का नहीं होता ना, तब तक इट्स नॉट केपेबल ऑफ एसोसिएटिंग विद मशरूम्स एंड फॉर्मिंग दीज नेटवर्क्स. तो हाँ, शायद हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो these were different substrates हमने जाने ताकि हमें पता चले कि मशरूम के लिए कहाँ देखना चाहिए और कहाँ हो सकते हैं और वो क्या करते हैं उनके साथ. और हमने देखा कि किस किस टाइप की मोर्फोलॉजीज में मिलते हैं. जेली टाइप होते हैं, कोरल टाइप होते हैं. तो now we will go a little bit more deeper into each and every part of the mushroom, okay? क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब आपने सिर्फ पीलियस देख लिया तो मशरूम का मालूम पड़ जाएगा. पीलियस में भी बहुत सारे टाइप ऑफ कैप्स रहेंगे. There will be a lot of type of gill attachments, annulus will be there or not. तो इस सब पे हम आएंगे, ठीक है? So specifically most of the presentation will be talking about agaric type mushrooms. और अगैरिक मैं बोल रहा हूँ, इसका आप इसको अगैरिक कस से कंफ्यूज मत करना. लेट मी बी वेरी क्लियर. अगैरिक टाइप जो गिल्ड मशरूम, जो ये छतरी वाले होते हैं, उसको अगैरिक टाइप बोलते हैं. और जो मार्केट वाला बटन मशरूम है ना, उसका नाम है अगैरिकस. अगैरिकस इज द जीनस, वेयर एज अगैरिक टाइप इज ओनली एक लुक मशरूम का. जो ये छतरी टाइप गिल्ड मशरूम रहते हैं उनको अगैरिक टाइप बोलते हैं. तो ये एक फोटो ले लेना पहले तो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि काफी सारे लोग जब आइडेंटिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेजते तो मशरूम का इतना जूम्ड आउट पिक्चर भेजते या सारे पिक्चर्स नहीं भेजते ना, तो उसकी वजह से मालूम नहीं पड़ता कि मशरूम कौन सा है. सो दीज टिप्स आर अमेजिंग. तो आप देख सकते हो कि इसमें हैबिटेट का भी फोटो दिखाया है कि सबस्ट्रेट कौन से सबस्ट्रेट पे उग रहा है. क्योंकि आपको सबस्ट्रेट मालूम पड़ गया तो 20,000 में से शायद आपको 7,000 मशरूम के बारे में ही सोचना पड़ेगा. बाकी ये 13,000 तो कट गए. उसके बाद अंडर साइड देखोगे तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है हम जानेंगे, ठीक है? फिर एंटायर मशरूम फ्रॉम द बेस टिल द टॉप ऑफ द कैप, ठीक है? डिटेल्ड व्यू ऑफ द टॉप ऑफ द कैप. अगर आप पफ बॉल या कोई अंडा टाइप मशरूम देख रहे हो तो उसका क्रॉस सेक्शन भेजना चाहिए. काफी सारे मशरूम्स होते हैं जो अपॉन डैमेज दे विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड गिविंग आउट अ कलर. उसको स्टेनिंग बोलते हैं. तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है. आप किसी भी आइडेंटिफायर को जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाओगे वो उतना एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन आपको देने की कोशिश कर सकता है. तो जैसे मैंने बोला कि हम अगैरिक टाइप मशरूम्स पे काम करेंगे आज सबसे ज्यादा. So there are so many type of caps that you can see here. There is cylindrical caps, there are conical caps, there are bell-shaped caps, there are ambonate caps, convex cap होती है. तो अभी अगर मुझे ऐसे किसी मशरूम के बारे में समझना है और मैं इसका ऊपर से अगर फोटो ले रहा हूँ तो मुझे तो लगभग सब कुछ सेम ही लगेगा. तो ऊपर से लिया, साइड एंगल से लिया, ठीक है? और समझने के लिए भी कि कितनी वैरायटी खाली अगैरिक टाइप मशरूम्स में ही है. फनल शेप हो गया, डिप्रेस्ड शेप हो गया, अम्ब्लिकेट हो गया. तो इसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं तो और आइडिया आएगा. तो कोप्राइनस कोमाटस पता है काफी लोग को. इसको शैगी मेन भी बोलते हैं, ठीक है? इसकी इंक बन जाता है ये स्लोली ये मशरूम. तो इसका बहुत ही एक बढ़िया फैक्ट है. तो शैगी मेन मशरूम एक तो एकदम ऐसे इस सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है? और फिर इसका जब कैप ओपन होएगा ना और वो इंक बन जाता है, तो जो स्पोर्स होते हैं ना वो इंक में होते हैं, ओके? तो जो जर्मन सोल्जर्स थे ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो लोग एक दूसरे को सीक्रेट मैसेजेस भेजते थे. पर सीक्रेट मैसेजेस ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकता या आप नहीं पढ़ सकते, आप भी पढ़ सकते हो उसको. वो ब्लैक इंक से लिखा जाता था, पर वो ब्लैक इंक ना स्पेसिफिकली कोप्राइनस कोमाटस की यूज होती थी. तो उसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बोला कि इसके इंक में स्पोर्स गिर जाते, ठीक है? उसको जी. तो बेसिकली अगर मैं जर्मन हूँ और आप जर्मन हो, ठीक है, और मैंने आपको मैसेज भेजा है ब्लैक इंक में लिखा हुआ, तो पहले तो आप ना माइक्रोस्कोप से वो देखोगे
कि उसमें मुझे स्पोर्स दिखते हैं कि नहीं इंक में। अगर इंक में स्पोर्स दिखे तो मान सकते हैं कि हाँ ये एक जर्मन को भेजा है और कोई उसको उल्लू नहीं बना रहा है कि किसी और मिलिट्री फोर्स ने नहीं भेजा है। सो दैट इज हाउ दे यूज देयर ब्रेन्स। That is just a very cool fact about Coprinus comatus. So Coprinus comatus is like a cylindrical cap. Okay. Then conical cap है तो conocybe mushroom है. Conocybe are also very much found on dungs and in the soil. और जैसे नाम conocybe है ना, तो कोनो से आपको पता चल रहा है कि कौन को वो डिपिक्ट कर रहा है। तो कोनोसाइप्स इज लाइक अ कोनिकल कैप मशरूम। अभी देखो दोनों मशरूम साइड से हम देख रहे हैं तो कितने अलग अलग दिख रहे हैं। फिर बेल शेप्ड हो गए तो ये है कॉपरिनेलस सेक्शन माइकेशियस। ओके, एज वी कैन सी इट इज ग्रोइंग आउट ऑफ ग्राउंड, मे बी सम बिट्स ऑफ would be present around it. So these are bell shaped mushrooms. देन अम्बोनेट कैप होती है, ये टोमेटोमाइसिस है, अगेन फ्रॉम समवेयर फ्रॉम कर्नाटका, यस कर्नाटका। तो ये जो ऊपर आपको टिप दिख रही है ना, इसको बोलते हैं अम्बोनेट। तो ये टोमेटोमाइसिस का बहुत ही शार्प आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि हम टोमेटोमाइसिस के कैप्स है ना ऐसे अम्बोनेट रहते हैं। दूसरे भी मशरूम्स है जिसके अम्बोनेट रहते हैं, पर जैसे सॉइल में से उग रहा है तो सबस्ट्रेट भी मुझे पता चल गया कि ये सॉइल है। उसके बाद तो मतलब ऐसा होएगा कि इसके नीचे कहीं पे एक टर्माइट माउंड होएगा, वरना ये टोमेटोमाइसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद आ गए अम्बिलिकेट कैप, तो ये है मरास्मियस रोटुला। ठीक है, अम्बिलिकेट मतलब खड्डा होता है बीच में इस टाइप का। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने एक दूसरा ऐसा मशरूम का फोटो पहले वाले स्लाइड में यूज किया है, पर उसका सबस्ट्रेट अलग है। इफ यू सी मरास्मियस रोटुला is growing on wood over here, okay? और मैं अगर सबस्ट्रेट्स वाली स्लाइड पे वापस जाऊं तो यहाँ है मरास्मियस कैपिलारिस जो लीफ सबस्ट्रेट पे उग रहे हैं। अभी आप देखो अभी ये याद रखना क्योंकि हम वापस नहीं आएंगे, ये मशरूम और ये मरास्मियस दोनों सेम ही दिखते हैं, बट बिकॉज देयर सबस्ट्रेट इज डिफरेंट, आई कैन से कि एक कैपिलारिस है और एक रोटुला है। तो इसीलिए सबस्ट्रेट कौन सा मशरूम कहाँ पे उग रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू डॉक्यूमेंट ऑल्सो। फिर कॉन्वेक्स कैप आती है, तो कॉन्वेक्स मतलब स्कूल में फिजिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। तो ऊपर से आपको साइड से देख सकते हो, तो ऊपर से जो विजन होता है ना उसमें आपको कॉन्वेक्स दिखेगा ना, इसलिए कॉन्वेक्स बोला जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको कॉन्केव क्यों नहीं बोल रहे। हम ऊपर से जब देखेंगे इस मशरूम को तो ऊपर से कॉन्वेक्स दिखेगा ना, इसीलिए इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। सो दिस इज एन एग्रोसाइब मशरूम एंड इट इज अगेन ग्रोइंग आउट ऑफ द ग्राउंड। ये बहुत कॉमन मशरूम है, उसको फील्ड कैप्स भी बोलते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने बोला कि इसको फील्ड कैप्स भी बोलते हैं, पर अगर आप गूगल करोगे ना फील्ड कैप्स तो आपको 3-4 मशरूम के नाम आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ अगैरिकस में भी कुछ मशरूम ना फील्ड कैप्स में आते हैं, एग्रोसाइब में भी आते हैं कुछ मशरूम फील्ड कैप्स में। अभी बात ये दिक्कत कहाँ पे आएगी, अगर आप पूछते हो कि यार ये फील्ड कैप एडिबल है कि नहीं, ठीक है, तो कोई शायद बोल देगा कि हाँ एडिबल है, पर जो सही आइडेंटिफिकेशन देता है ना वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे कॉमन नेम बता इस मशरूम का साइंटिफिक नेम जानो, फिर गूगल करो उसको आपके सर्च इंजन में कि वो एडिबल है कि नहीं, एंड फिर उसकी एडिबिलिटी पे आप सवाल उठा के फिर खाने का मन होता है तो खा सकते हो। तो दैट इज व्हाई साइंटिफिक नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कॉमन नेम्स आर बेस्ट टू रिमेंबर द मशरूम की कहाँ मिलता है। जैसे वुड ईयर मशरूम हो गया जो जेली टाइप लकड़ी पे उगता है, पर फिर भी उसका नाम ऑरिकुलरिया है, ऑरिकुलरिया ऑरिकुला जुड़े, तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो कॉन्वेक्स कैप हो गई कैप शेप में। फिर डिप्रेस्ड कैप आती है, जो मैंने रसुलस दिखाए थे, रसुलस जनरली हैव अ डिप्रेस्ड कैप, वो बीच में से ऐसे जैसे अम्बिलिकेट ना एकदम खड्डा आ जाता है, डिप्रेस्ड कैप थोड़ा ऐसा डीप नहीं होता है पर लंबा खड्डा होता है। तो कैप के बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द कैप। तो
तो कैप मार्जिन में भी काफी डिफरेंसेस होते हैं. स्मूथ कैप्स होती है, स्कैलोप्ड कैप्स होती है, स्ट्राइएट कैप्स होती है, वेवी कैप्स होती है, अपेंडिकुलेट होती है, रिमोस क्रैक्ड कैप्स भी होती है. इससे ज्यादा टाइप के भी कैप्स है, पर मैं आपको एग्जाम्पल से ये दिखाना चाहता हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इसको ना. तो मतलब और 5-6 टाइप की कैप्स के मार्जिन्स है, पर वो डिस्कस नहीं करके लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमको देखना कहाँ कहाँ है. सो फर्स्ट वी अंडरस्टूड कि कैप के शेप कितना इंपॉर्टेंट है. अभी कैप के मार्जिन्स के बारे में बात करते हैं. तो आई एम नॉट श्योर अगर आपको स्क्रीन में विजिबल होगा कि नहीं, पर यहाँ आप ये है लुकोकॉर्पिनस बर्नबॉमी. ये मुझे मिला था वापस बैंगलोर में. तो यहाँ पे लाइंस है. तो ये लुकोकॉर्पिनस का ना एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि उसके एजेस पे यू कैन सी लाइंस, व्हिच मींस इट्स अ स्ट्राइएट कैप. उसको टेक्निकली स्ट्राइएट कैप बोलते हैं. ठीक है. एक और फोटो है. लुकोकॉर्पिनस क्रिटेशियस है. ये बर्नबॉमी था. ये दूसरा लुकोकॉर्पिनस, पर ये क्रिटेशियस है. इसमें आपको यहाँ दिख रही होगी, देखो ये लाइंस है. अभी आप दूर से खड़े होगे ना, दूर से फोटो ऐसे ही भेज दोगे कि भाई ये कौन सा मशरूम है, तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा. पास जाके देखना पड़ेगा वापस. उसके बाद आती है स्मूथ कैप मार्जिन्स. तो मैक्रोसाइप जाइजेंटी, आई थिंक अगर आप कल्टीवेटर हो तो आपको, या तो आपने अगर बीच में इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स आई थी कि एक बहुत बड़े बड़े मशरूम निकल रहे हैं. वो सारे ये मशरूम्स है मैक्रोसाइप जाइजेंटी. तो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक पूरा एक क्लस्टर होता है इस मशरूम का. वो इंडिविजुअल नहीं आते, जनरली क्लस्टर में आते हैं. और उनके जो कैप मार्जिन है ना, वो बहुत ही स्मूथ रहते हैं. तो स्मूथ कैप मार्जिन इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन फीचर. देन मैंने बोला वेवी कैप्स होते हैं. ऐसा लगता है वेव्स आ रहे हैं. तो इसमें स्ट्राइएशंस भी दिख रहे हैं हमको. ठीक है. तो अगर कोई बहुत ही मतलब ध्यान से देखेगा तो बोलेगा स्ट्राइएशंस भी है, पर इसमें वेव्स भी है. इसलिए इसको हम वेवी कैप्स भी बोलते हैं, बाय द वे, सिलोसाइप सायानेसेंस को. तो दैट इज आल्सो अगेन एन आइडेंटिफिकेशन फीचर. फिर कुछ ना पैनियोलस होते हैं मशरूम्स, दीज वंस व्हिच ग्रो ऑन डंग. ठीक है. डंग और सॉइल में मिलते हैं, ज्यादा डंग के पास मिलते हैं. तो पैनियोलस पैपिलियोनेशियस ग्रुप है ये, और उसको पेटिकोट मोटल गिल भी बोलते हैं. ठीक है. तो आप इसका अगर कैप मार्जिन देखोगे ना, तो ये पेटिकोट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको. ऐसा लग रहा है कि कोई डाइनिंग टेबल का वो है, मैट लगा के रखा है ना. तो अगर ये चीज नहीं होती ना इधर, तो ये शायद पैनियोलस तो होता, पर और कोई स्पीशीज हो जाता. सो दिस इटसेल्फ इज एन आइडेंटिफिकेशन फीचर. अगर ऐसा मैंने तो कभी सोचा था लाइफ में कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर एक मशरूम के ऊपर ये शेप्स मुझे दिखेंगे, मतलब, पर ऐसा नहीं है. एवरी शेप इन अ मशरूम होल्ड्स सम इंफॉर्मेशन. तो मतलब ऐसा नहीं कि ये गलती से उधर आ गया है, ये वो है तो मतलब उसका कोई मीनिंग है. ठीक है. और मोटल गिल क्यों बोलते हैं उसका हम बाद में आते हैं उस पर. फिर थे क्रैक्ड कैप्स, राइट, मार्जिन्स. तो टर्मिटोमाइसिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ क्रैक्ड कैप्स आल्सो. टर्मिटोमाइसिस जब बड़े हो जाते हैं ना, ऑलमोस्ट जब काफी मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके एजेस ऐसे क्रैक हो जाते हैं. एंड लिटरली अगर आप ऊपर का एक लेयर लेके ऐसे पील करोगे ना, तो चमड़ी फट रही हो ना, ऐसा लगता है. तो क्रैक्ड कैप्स इज अनदर, सो कैप मार्जिन, क्रैक कैप इज अनदर फीचर ऑफ कैप मार्जिन. दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन फीचर है जिसको बोलते हैं हाइग्रोफैनस प्रॉपर्टी. तो ये सारे सथायरेला स्पीशीज है. मैं आपको और एक सथायरेला का फोटो दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ये जो राइट साइड पे ये मशरूम्स है ना, यही मशरूम्स एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको बोलता है हाइग्रोफैनस. तो बहुत सारे मशरूम्स ना नेचर में ब्राउन कलर के मिलते हैं, तो उसको लिटिल ब्राउन मशरूम्स को बोल के जाने दिया जाता है. पर अगर आप देखोगे तो ये सारे मशरूम्स एक ही है, पर इसमें ना कोई में पानी ज्यादा है, कोई में पानी कम है. उसके कैप में मॉइस्चर लेवल कम ज्यादा है, उसकी वजह से ऐसे अलग अलग कलर्स में ये आ रहा है. ये मुझे बैंगलोर में मिला था, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोफैनस प्रॉपर्टी.
तो कुछ मशरूम्स होते हैं जो ये बिहेवियर दिखाते हैं, कुछ मशरूम्स होते हैं जो ये नहीं दिखाते हैं, तो उससे भी आप काफी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर कैप डेकोरेशन की बात करें हम कैप में, तो कुछ मशरूम ना ऐसे स्पेसिफिकली जो ये चीज है और ये चीज है, तो अभी ये दोनों मशरूम ना कोई ऊपर ऊपर से एकदम जल्दी जल्दी में देख लेगा तो या तो एक दिन बाद याद करेगा तो दोनों को एक ही चेहरा याद आएगा, दोनों मशरूम की स्पेसिफिक डिटेल्स याद नहीं आ गई, ऐसा हो सकता है, राइट? बट क्लार्किएंडा ट्रकोड्स जो है, द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट दीस टू मशरूम इज बिकॉज वन ऑफ देम इज पॉइजनस एंड इट कैन बी लाइक लीथल एंड द अदर वन इज अ चॉइस एडिबल, और लोग खाते हैं। तो जो लेफ्ट वाला ये वाला मशरूम है ना, ये वेनमस नहीं, पॉइजनस मशरूम है, ठीक है? और उसपे ये जो 4 साइड्स वाला फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। ओके, बहुत बारिश हो गई या कोई जानवर आके उसको घिस के चला गया तो बात अलग है, वरना तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जबकि मैक्रोलेपियोटा का कैप डेकोरेशन काफी डिफरेंट है। तो ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यू नीड टू जूम इन, गो नियर द मशरूम एंड टेक अ पिक्चर ऑफ इट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, यूनिवर्सल वेल। तो जैसे मेरा पॉइंटर देखना, तो ये जो यहाँ पे पार्शियल वेल है ना, जो मशरूम का स्कर्ट रहता है, वैसे ही यूनिवर्सल वेल होता है। तो काफी मशरूम में ऐसे सैक लाइक अंडा टाइप स्ट्रक्चर में स्टार्ट होते हैं और यही वेल उसको पुश करता है। तो ये जो ऊपर का भाग है ना, ये ऊपर का भाग उसकी कैप्स पे चिपक जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि, तो यही चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का जो है ना अंडा, ये बड़े होते होते ऐसा हो जाएगा, तो वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है। सो अ लॉट ऑफ मशरूम्स हैव पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल वेल ऑन देयर कैप्स, और उसको रेमनंट्स ऑफ द यूनिवर्सल वेल बोलते हैं। तो दिस इज कॉपरिनॉप्सिस सेक्शन कॉपरिनॉप्सिस व्हिच वाज फाउंड इन बैंगलोर। अगर आप लोग को सवाल है ना, तो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वील डू क्वेश्चन आंसर्स। तो आई गेस शायद सवाल होंगे अभी तक में, तो हम लास्ट में उसको देखेंगे, ठीक है? आप बस लिख के रखना हर एक चीज। फिर कॉप्रिनेला सेक्शन डोमेस्टिकाई, तो ये पहले भी मैंने दिखाया था आपको, जो मुझे मिला था, राइट? ब्राउन कलर के पीसेस होते हैं। अभी इसका एक बहुत प्यारा दूसरा आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि उसका ना ओजोनियम रहता है। तो दिस इज ऑल्सो माइसीलियम, ये आपको फायर रग बोलते हैं इसको, ठीक है? दिस इज अ माइसीलियम जो मैच्योर हो गया है और ऐसा एकदम लकड़ी को घिस के ऐसे उसके जो बाल निकलते हैं ना, उसके जैसा दिखता है कभी कभी, या फायर रग बोलते हैं इसको। सो अगर ये आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली दिस मशरूम विच ग्रोज नियर इट इज आइदर कॉप्रिनेलस सेक्शन डोमेस्टिकाई और कॉप्रिनेलस सेक्शन ओरियो ग्रैन्युलाटी। तो अगर दोनों मशरूम मुझे ओजोनियम दे रहे हैं तो उनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि सेक्शन डोमेस्टिकाई का जो पार्शियल वेल, जो यूनिवर्सल वेल रेमनंट्स है ना, जो वेलम है, वो डार्क ब्राउन होते हैं, पर ओरियो ग्रैन्युलाटी एज द वर्ड सजेस्ट, ग्रैन्युलाटी इतने ग्रैन्युलर रहते हैं, छोटे छोटे सैंड टाइप, तो फिर बहुत ही इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। पर दोनों सेम जीनस के, पर दे आर डिफरेंट स्पीशीज। ओके, सो दीज आर अगेन आइडेंटिफिकेशन फीचर्स। तो हम लोग ने कैप देखा, एज ऑफ द कैप देखा, ठीक है? अभी हम गिल्स पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडर साइड ऑफ द मशरूम। काफी बार आपने सुना होगा किसी आइडेंटिफायर को बोलते हुए कि भाई शो द अंडर साइड ऑफ द मशरूम, सेंड गुड पिक्चर्स। तो उसका मतलब मोस्टली यही रहता है कि भाई नीचे से कैसा दिखता है वो दिखाओ, क्योंकि गिल्स क्राउडेड है, मतलब एक एक गिल का जो लाइन है वो क्राउडेड है, क्लोज है, सब डिस्टेंट है कि डिस्टेंट है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये एस्प्रोइनोसाइब है जो मुझे बड़ौदा में मिला था, ठीक है? दिस इज अ मरास्मियलस स्पीशीज। तो आप देखो इसमें कितने सारे गिल्स में कितना सारा डिस्टेंस है, ठीक है? फिर अगेन मैरास्मियस रोटुला इधर है, तो ये आप देख सकते हो कि गिल्स में भी डिस्टेंस है। तो मशरूम ऊपर से और साइड से आइडेंटिफाई नहीं होता, नीचे से भी आइडेंटिफाई होता है।
एंड इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. काफी सारे आइडेंटिफायर्स ना ऊपर नीचे छोड़ के खाली गिल्स और आप गिल का जो अटैचमेंट होता है ना स्टाइप को, विच इज दिस एरिया, वो दिखा दोगे ना तो भी आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा. वो एक्सपर्ट्स मतलब कर पाते. सब डिस्टेंट गिल्स होते हैं. ये थे लैक्टेरियस स्पीशीज जो मुझे हिमाचल प्रदेश में मिले थे. ये माइकोराइजल रहते हैं. देखो माइकोराइजल बोल रहा हो तो मालूम है सॉइल में पैदा हो रहा होगा तो आपको दिख रहा है ना, मशरूम के ऊपर सॉइल चिपका हुआ है स्टाइप के नीचे यहाँ पे. तो सब डिस्टेंट गिल्स है लैक्टेरियस के. अगैरिकस मिला था उसके क्राउडेड गिल्स रहते हैं. इतना क्लियर फोटो नहीं पर आपको दिख सकते हो कि इतने में ही लगभग 10 लाइन है. तो इतने सारे गिल्स रहते हैं, मतलब इतने लैमेले के सिंगल लैमेलेज रहते हैं. रसुला स्पीशीज का ना एक स्पेशल फीचर ये है. अच्छा मैं आपको पहले उसको समझाने के लिए, अभी आपको दिख रहा है इसमें एक लंबा गिल है ना, फिर एक 1/3 गिल है, फिर एक हाफ गिल है, फिर वापस एक पूरा गिल है. तो ये अलग अलग मतलब उसका अनइक्वल गिल्स बोल सकते हैं ना. तो रसुला स्पीशीज ना स्पेसिफिकली उसके इक्वल गिल्स रहते हैं, मतलब हर एक गिल ना टाइप से एज ऑफ द कैप तक जाता है. तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है जो आपको नहीं दिखेगा जब तक आप छुप के देखेंगे नहीं मशरूम को. अनइक्वल गिल्स का दूसरा एग्जांपल देखिए. तो ये आपको दिख रहा है जैसे रसुला के सारे इक्वल है ना, सब जा रहे हैं स्टाइप से लेके एज ऑफ द कैप तक. साथायरेला के आप देख सकते हो इस वाले के, ये अनइक्वल है. तो दिस इज अगेन एन आइडेंटिफिकेशन फीचर. ठीक है. फिर कुछ मशरूम होते हैं जिसका ऐसे गिल्स तो रहते हैं कैप के मार्जिन से स्टाइप तक, पर साइडवेज भी जाते हैं. उसको बोलते हैं एनास्टोमोस गिल्स. सो कुछ मशरूम्स हैं जो सिमिलर हैबिटेट में मिलेंगे, पर वो फिर ये कुछ मशरूम्स एनास्टोमोस गिल्स रखेंगे, कुछ मशरूम्स एनास्टोमोस गिल्स नहीं रखेंगे. तो दैट इज अगेन एन आइडेंटिफिकेशन फीचर, क्योंकि फिर पूरा जीनस बदल जाता है. उसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल कॉलीबायोप्सिस और मरास्मियस. तो मरास्मियस आई थिंक एनास्टोमोस होता है, कॉलीबायोप्सिस में नहीं होते. तो उससे भी दोनों, और काफी सारे ना पास पास ग्रो होते हैं और काफी सिमिलर दिखते हैं. उनकी स्पोर प्रिंट का कलर भी सेम रहता है. तो स्पोर प्रिंट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन फीचर. उस पर भी मैं आऊंगा. तो हम लोग गिल अटैचमेंट टू स्टाइप पे आते हैं. अभी गिल्स समझ लिए, अभी उसका अटैचमेंट टू स्टाइप पे आते हैं, मतलब दिस एरिया. तो अब ये पिक्चर देख सकते हो कि कितने सारे टाइप के गिल अटैचमेंट्स रहते हैं. देयर इज एडनेट, एडनेक्स्ट, डिकरेंट, मतलब पूरा गिल चिपका हुआ है. फिर part of the gill is stuck, which is adnext. Decurrent is where the gills are running down. Oyster mushrooms अगर आपने उगाए हैं तो आपने देखा होगा कि oyster mushroom के gills decurrent होते हैं. वो कैप्स के एज से स्टार्ट होते हैं और स्टाइप में नीचे नीचे तक जाते हैं. राइट. देयर आर सब डिकरेंट गिल्स. तो मतलब डिकरेंट इतना लंबा जाता है, सब डिकरेंट थोड़ा जाता है. अगर मैं लैक्टेरियस के गिल्स देखूं तो इस फोटो में अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर इसके डिकरेंट गिल्स है. ठीक है. अगर किसी को वापस देखना हो तो ये डिकरेंट गिल्स है. फिर फ्री गिल्स आते हैं. अगर आपने अगैरिकस वाइल्ड में देखा होगा, क्योंकि बटन मशरूम के तो गिल्स दिखते ही नहीं है ठीक से, क्योंकि वो हार्वेस्ट ही उस पीरियड के पहले हो जाते हैं. पर अगैरिकस में ना सारे फ्री गिल्स होते हैं. फिर सिनुएट गिल्स होते हैं, इमार्जिनेट गिल्स होते हैं, सिसीडिंग गिल्स होते हैं. ये हर एक टाइप गिल का फोटो के हिसाब से है. तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. अच्छा, ये एक शिटाके जब मैंने उगाए थे तो शिटाके का गिल अटैचमेंट, या कोई भी मशरूम का गिल अटैचमेंट कैसे देखना है उसकी स्लाइड है ये. बेसिकली मशरूम को बीच में से आप पकड़िए और धीरे धीरे उसको टेयर अप कीजिए. तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये फ्री गिल्स है. देखो गिल ऐसे जा रहा है, यहाँ से टर्न मार रहा है और ये स्टाइप इधर है. तो यहाँ पे बीच में काला काला दिख रहा है ना, it means it is not touching the stipe, so it is a free gill. So this particular thing is also an identification feature. Okay, तो adnext gills देखते हैं. तो माइसीना का देखो adnext gills है. ठीक है. So this particular area tells you about the gill attachment. Adnext gills है माइसीना के. उसके बाद हम देखेंगे प्लूरोटस, मैंने जैसे बोला तो गिल जा रहा है. माइसीना का इधर तक था, प्लूरोटस का नीचे तक जा रहा है, इधर तक जा रहा है.
तो उसको बोलते हैं डिकरेंट गिल्स। उसके बाद है सब डिकरेंट गिल्स, देखो लैक्टेरियस। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जब आप साइड एंगल फोटो लेते हो तो अगर आपको गिल अटैचमेंट दिखाना है तो साइड एंगल लेना ज्यादा सही है टॉप एंगल से ना, या मशरूम को पूरा भी उल्टा कर दिया तो उसका क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो ये लैक्टेरियस मशरूम के सब डिकरेंट है। देखो डिकरेंट इतना नीचे तक जाता है, सब डिकरेंट थोड़ा तक जाता है, तो वो नोमेनक्लेचर थोड़ा समझना पड़ता है। फिर मैंने जैसे बोला था ना फ्री गिल्स अगैरिकस के होते हैं, तो ये देखो ये वापस फ्री गिल्स का एग्जांपल है। ये आपको दिख रहा है गिल्स आर नॉट टचिंग द स्टाइप, so these are free gills. So these are two examples of mushrooms which were found very close by. आप देख सकते हो इसके फ्री गिल्स हैं और इसके फ्री गिल्स नहीं है, ठीक है, फ्री गिल्स एंड नॉट फ्री गिल्स। आप इसको इसको हम बोलेंगे एडनेट गिल्स, राइट। ये पूरा देखो पूरा लग रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे ना एडनेट, क्योंकि देखो ये पूरे का पूरा लग रहा है। तो दिस वाज एन एग्रोसाइब ओवर हियर एंड दिस इज अ वोल्वोप्लूटियस। एनीवेज, तो मेनली तो इस स्लाइड से यही समझना है कि गिल अटैचमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। काफी लोग को मालूम ही नहीं होता कि ये होता भी है। तो गिल अटैचमेंट के बाद ना कुछ मशरूम्स है ना रूल्स बहुत ब्रेक करते हैं। अगर मैं सारे को ऑर्गेनिक टाइप में भी डाल दूं तो भी उसमें कुछ रूल ब्रेकर्स हैं। तो कुछ के गिल्स रहते हैं, कुछ के टीथ रहते हैं, कुछ के पोर्स रहते हैं। जैसे बोलिट्स हो गया, बोलिट्स तो खैर ऑर्गेनिक नहीं है, रिजेस रहते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे भी आता हूँ अभी कि क्या है। हाइडनम स्पीशीज, ऊपर से तो मशरूम ऑर्गेनिक टाइप ही दिखेगा, पर अगर आप उसको उल्टा करके देखोगे ना तो उसमें टीथ दिखेंगे आपको, ठीक है। ये भी ये टेरेन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में तो नहीं दिखा है। इट इज आई थिंक मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट जोन, मतलब पाइन ट्रीज के आसपास मिलेगा आपको। फिर शैंट्रेल्स है, तो अगर आप देखते हो कि इसके बहुत ही थिक गिल्स हैं। दूसरे मशरूम्स के गिल्स देखेंगे ना तो पतले पतले काफी, शैंट्रेल का गिल बहुत ही थिक होता है, तो उसको रिजिस बोलते हैं। सो नाउ द थिंग इज कि शैंट्रेल है और देयर इज अ फॉल्स शैंट्रेल आल्सो। तो इस स्लाइड में मैंने वो दिखाया है। ये ना शैंट्रेल है ऑन द राइट ओवर हियर, ओके। तो आपको दिख रहा है कि रिजेस है इसके, पर ये फॉल्स शैंट्रेल है। जो ऊपर से तो शैंट्रेल जैसा ही दिखता है क्योंकि उसका सबस्ट्रेट हैबिटेट भी काफी सिमिलर है। तो हाइग्रोफोरोप्सिस फॉल्स शैंट्रेल में आता है। अगर इसलिए आपको गिल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी why is this a point of discussion is because Scantharellus is a very tasty edible and a very nutritive mushroom also, and they are mycorrhizal। तो मतलब स्पेशली सीजन में ही पैदा होंगे जब इसका करेक्ट टाइम आता है। So that is why this is very important to know. Then there is Philobolithus species, उसमें ऐसे pores रहते हैं। So they are very close to Mycena, the Mycena mushrooms. These are my बायोलुमिनेसेंट मशरूम्स, मतलब ये ना रात को कलर चमकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि वेस्टर्न घाट्स में मशरूम्स मिले जो बायोलुमिनेसेंट है, ऐसे पोस्ट्स देखे होंगे, तो दिस इज वन ऑफ दोज मशरूम्स व्हिच इज बायोलुमिनेसेंट। इट इज कॉल्ड Philobolithus manipularis। रिपीट, Philobolithus manipularis। उसके बाद हमने गिल अटैचमेंट्स और गिल का देखा। अभी हम स्टाइप पे आते हैं, तो ये स्टेम के ऊपर, ठीक है। So mushroom type can be hollow to being solid. They have different textures which really helps in the identification of certain mushrooms, ठीक है। अभी मैंने 2 एग्जांपल्स इधर रखे हैं। अभी इसकी स्टाइप पे आपको दिखेगा एकदम स्मूथ स्टाइप है, ठीक है, और इसकी ये जो राइट साइड वाला है ना, उसकी स्टाइप पे छोटे छोटे हेयर है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएशन फीचर, ओके। और एग्जाम्पल्स है बैटारिया फेलोइड, दिस इज अगेन अ मशरूम, उसकी टाइप देखो। अमैनिटा मैनिकाटा, तो ये
अमानिटा सेक्शन लेपिडेला करके सैप्रोफिटिक अमानिटा का एक सेक्शन है, उसमें ये मशरूम आता है अमानिटा मैनिकाटा। उसकी स्टाइप देखो, मतलब कितना डेकोरेटेड स्टाइप है। फिर है मैक्रोलेपियोटा प्रोकेरा, ठीक है, या प्रोसेरा। दिस इज अ वेरी टेस्टी एडिबल, ठीक है। पहले वाली स्लाइड में भी इसका ऊपर का फोटो था, तो आप देख सकते हो कि इसकी स्टाइप में ना स्नेक स्किन टाइप टेक्सचर्स हैं। एंड काफी सारे इंडियंस, इनफैक्ट कल ही एक आइडेंटिफिकेशन ग्रुप में आया था पॉइजनिंग का केस, तो उसमें ये मालूम पड़ा कि लोगों ने ये एक्सट्रीम राइट वाला मशरूम खा लिया है ये समझ के कि ये वाला मशरूम है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टाइप है मैक्रोलेपियोटा प्रोसेरा विच इज एन एडिबल, उसका स्नेक टाइप स्ट्रक्चर दिखता है आपको, बट जो क्लोरोफाइलम है जो कंफ्यूज होता है लोगों को, उसका स्मूथ टाइप है, ठीक है। सो दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस। तो हमने स्टाइप की बात की, नाउ विल गो टू द एनुलस। एनुलस इज एसेंशियली द स्कर्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द मशरूम, ठीक है। So they can be present or they can be absent. If present, they can be small or big in size. ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। देखो लुकोकॉप्रिनस क्रिटेशियस का बहुत छोटा एनुलस है। सेथाइरेला में एनुलस होता ही नहीं है विजिबल। क्लार्किएंडा ट्रकोडिस, दिस इज अगेन दैट पॉइजनस मशरूम जिसका ऊपर 4 लीफ का वो रहता है, 4 फ्लावर टाइप शेप रहता है, ये वाला। तो ये जो मशरूम है ना जो पॉइजनस है, उसका जो एनुलस है वो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल स्कर्ट आता है उसका, पर ये जितना ब्यूटीफुल दिखता है ना उतना ही पॉइजनस है, ठीक है। और है लुको अगैरिकस रूब्रोटिंटस, तो उसका देखो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का स्टाइप है, मतलब it looks very different. This type, the annulus looks very different from this particular annulus. So annulus is also an identification feature. The more deeper you will get into all this, ये सारी चीजें ना आपको एकदम दिखने स्टार्ट हो जाएगी। फिर है माइक्रोसैलियोटा। माइक्रोसैलियोटा का देखो एकदम है annulus पर बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है। फिर है लुकोकॉप्रिनस फ्रैजिलिस्मस। अभी ये मशरूम देखो सॉइल से आ रहा है, ठीक है, पर इसमें ये एनुलस है इधर। अभी मैं आपको वापस दूसरा मशरूम दिखाता हूँ, ये वाला पैरासोला, ठीक है। ये देखो और ये देखो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, पर इसमें देयर इज नो एनुलस, इसमें देयर इज एन एनुलस। सो इट लुकोकॉप्रिनस फ्रैजिलिस्मस। और ये है अमानिटा। अमानिटा जो इमोजी मशरूम है हमारा, सैंटा क्लॉज मशरूम है, काफी सारे नाम है इसके, तो उसकी भी बहुत ब्यूटीफुल एनुलस रहता है। और ये जो है ना अमानिटा मस्कैरिया के ऊपर, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल वेल, क्योंकि अमानिटा मस्कैरिया भी अंडे में से, मतलब अंडा से स्टार्ट होते होते बड़ा होता है। तो हम लोग ने स्टाइप और एनुलस देखा, अभी हम बेस पे पहुंच जाते हैं उसके, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कुछ कुछ मशरूम जैसे एग टाइप वोल्वा में से आते हैं, तो ये वोल्वोप्लूटियस ग्लोयोसिफेलस। वोल्वोप्लूटियस, वोल्वो मतलब बस वोल्वो नहीं, वो वोल्वा में से आता है, इसलिए वोल्वोप्लूटियस बोला उसको। प्लूटियस भी रहते हैं और वोल्वोप्लूटियस भी रहते हैं, तो डिफरेंशिएशन यही है दोनों में कि एक अंडे में से निकलता है और एक विदाउट अंडा पैदा हो जाता है, ठीक है, वोल्वोप्लूटियस। फिर आप देख सकते हो क्लोरोफाइलम ब्रनियम, तो ये ना बैंगलोर, ये सारे बैंगलोर वाले मशरूम्स हैं, वहां मिले थे। क्लोरोफाइलम ब्रनियम का बेस पे एग नहीं है, पर उसका बेस काफी ब्रॉड है, ठीक है, तो बहुत ही ब्रॉड बेस रहता है उसका, विच इज अगेन एन आइडेंटिफिकेशन फीचर। अभी ये तो आपको दिखेगा ही नहीं जब तक आप मशरूम को पूरे अच्छे से डिग नहीं करते हो, ठीक है। तो बेस ऑफ दिस टाइप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आइडेंटिफिकेशन फीचर। हमने पहले ही टर्मिटोमाइसिस की बात की थी, ठीक है, द मशरूम विच द टर्माइट कॉलोनीज गिव आउट। तो ये जो दिख रहा है ना आपको एट द बेस ऑफ द मशरूम इज कॉल्ड अ सूडोराइजा। ये बहुत लंबा होता है, एकदम नीचे तक जाता है।
तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये मैंने टर्मिटोमाइसिस ही फाइंड आउट किया है कि नहीं, कि वाओ चलो एकदम हाई प्रोटीन मशरूम है, आज मैं घर पे खाऊंगा इसको, तो पहले उसको डिग करके, एकदम धीरे से डिग करके पहले फाइंड आउट करो कि उसको सूडोराइजा है कि नहीं. डेफिनेटली किसी आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट से उसको पॉजिटिव आईडी लो और फिर पका के खाओ. बट बेसिकली टर्मिटोमाइसिस हैव दिस सूडोराइजा. All mushrooms don't have such bases. Okay. दूसरा है यूडोमेंसियला रेडिकाटा, उसको भी ऐसा सूडोराइजा रहता है. तो इसको, ये बहुत ही पतला रहता है, तो इसको एक्चुअली खोदना और डिफिकल्ट हो जाता है टर्मिटोमाइसिस से. और यूडोमेंसियला की गिल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं. अगर आप 2-3 मशरूम्स को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि यूडोमेंसियला एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल मशरूम है. फिर कुछ मशरूम्स का बेस होता है ना, जो सबस्ट्रेट पे जाने से पहले ही इंटरफेस पे एक डिस्कस बेस बनाता है. एक बेस होता है जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको डिस्कस बेस बोलते हैं. सम मशरूम्स हैव अ डिस्क लाइक डिस्कस बेस. ये है माइसिना क्लोरोफोस एंड दिस इज आल्सो अगेन अ बायोलुमिनेसेंट मशरूम. तो देख सकते हो आप, इसमें आपको लग रहा होगा कि फ्री गिल्स है, पर ये उसके कलर की वजह से ये भी एडनेट ही है. एडनेट एड नेक्स्ट. फिर सम मशरूम्स हैव विजिबल माइसीलियम एट द बेस, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसको ओजोनियम बोलते हैं. ठीक है. तो कॉप्रिनेलस सेक्शन डोमेस्टिका है, कॉप्रिनेलस सेक्शन ओरियो ग्रैन्युलाटी, दोनों में ये ओजोनियम मिलता है. तो अगर आपको वुड पे मशरूम उगता हुआ दिख रहा है, अच्छा, अगर आप वेस्टर्न घाट्स में रहते हो ना, या कोई भी कोस्टल एरिया में, तो आपने देखा होगा काफी सारे बाथरूम में ना ये चीज आपको मिलेगी. उसका मतलब ये है कि मशरूम का माइसीलियम वो बाथरूम के लकड़ी में स्प्रेड हो रहा है. फेसबुक पे एक बहुत फनी पेज है, फनी तो नहीं है पर इंफॉर्मेटिव ही है. उसका नाम है मशरूम्स प्लेसेस वेयर दे डोंट नो वेयर टू ग्रो. मशरूम्स ऐसा कुछ नाम है. बेसिकली इट्स एन एंटायर ग्रुप जहां लोगों ने ऐसे ऐसे फनी पिक्चर्स डाले कि मशरूम कहीं लकड़ी में से, टॉयलेट की लकड़ी में से उग रहा है या झाड़ू में से उग रहा है. सो प्लेसेस वेयर दे डोंट नो वेयर टू ग्रो, ऐसा कुछ नाम है उसका. So again coming back to the main topic, ozonium is this fire rug type structure which is an identification feature for this genus of Coprinellus mushrooms. And दो sections के बारे में आप जान सकते हो उसके में, Coprinellus section domestici और Coprinellus section oreo granulati. उसके बाद आ जाता है ब्रूजिंग एंड स्टेनिंग. तो काफी सारे मशरूम को जब हम हार्म करेंगे ना, तो उसको काटने पे वहां पे ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है. तो कुछ बोलीट्स है which will bruise blue and some will not bruise blue. Some are also कि they will bruise blue quickly and some will bruise blue like after some amount of time. तो ये सारे बहुत ही स्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है बोलीट्स के लिए. और जैसे मैंने बोला ना कि कोई होंगे, कोई नहीं होंगे, कोई जल्दी होंगे, कोई थोड़ी देर बाद होंगे, तो अभी भी बोलीट्स का आइडेंटिफिकेशन पॉजिटिव आईडी के लिए बहुत डिफिकल्ट है. सब लोग को नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता एक्चुअली, सारा तो नहीं आता. तो some mushrooms will stain when they are injured. So bolete specifically, some of them will stain blue. फिर अगैरिकस जो जीनस है, जो हमारा बटन मशरूम है मार्केट वाला, अगैरिकस बाइस्पोरस. तो अगैरिकस इज ऑल्सो वेरी बिग जीनस. तो उसमें स्पेसिफिकली जो सेक्शन सैंथोडर्मेटिये है इज अ सेक्शन ऑफ पॉइजनस अगैरिकस मशरूम्स. और ये आप कैसे जान सकते हो, उसका टाइप देखो यहाँ पे काटा हुआ है, तो उसमें से येलो कलर का स्टेन निकल रहा है. इट स्टेन्स येलो. तो दैट इज एन आइडेंटिफिकेशन फीचर फॉर अगैरिकस सेक्शन सैंथोडर्मेटिये. अभी काफी लोग जाएंगे, ये मशरूम देखेंगे अगैरिकस है, सोच के खाएंगे, पर पहले देखो कि ये स्टेन होता है कि नहीं. अगर वो नहीं होता है फिर भी उसका पॉजिटिव आईडी ढूंढो, पर अगर स्टेन होता है तो डेफिनेटली आपको नहीं खाना है इसको. फिर मैजिक मशरूम्स के बारे में सुना होगा आपने. तो they have been used for treating depression. They are also used recreationally. Artists also use it for expanding their creativity. And काफी spiritual aspect जुड़ा हुआ है mushrooms के, entire mushrooms को लेके, और ये mushrooms को लेके उनका भी एक है कि ये भी ब्रूज ब्लू करते हैं. अगर आप इनको काटोगे साइड से तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पर ये ऑक्सीडाइजेशन और टर्निंग इनटू ब्लू कलर
डोंट कंफ्यूज दैट विद बोलीट्स, क्योंकि बोलीट्स भी ब्लूइंग होता है पर उसमें एक अलग कंपाउंड होता है, उसकी वजह से वो ब्रूस ब्लू होते हैं. और सिलोसाइब या पैनेवोलस है जो साइकोएक्टिव मशरूम्स है, they will bruise blue due to a different compound in them. But again, bruising is an identification feature. Then very interesting mushroom, this is Lactarius species. Okay, they will ooze out milk like substance when the gillos type is damaged or hurt. एक चाकू लेके अगर आप एक गिल पे ऐसे काटोगे ना तो उसमें से दूध निकलता है, और लैक्टेरियस इंडिगो में लिटरली ऐसा ब्लू कलर का निकलता है. मेरा सपना है ये मशरूम ढूंढना, अभी तक ढूंढा नहीं मैंने. लैक्टेरियस मिल गया है, लैक्टेरियस इंडिगो नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि ऐसा काट के मेरे को ब्लू कलर देखना, कितना प्यारा रंग निकलता है इसमें से. So essentially, if you cut the gills, you will get a milk-like substance, which will tell you that either this is a Lactarius mushroom or not. Lactarius, और अभी रिवीजन के बाद एक नया जीनस भी ऐड हुआ है लैक्टिफ्लूस करके, बट उसका पहले नाम तो लैक्टेरियस ही था. तो आपको फिर भी वो मशरूम, अगर आप इंडेक्स फंगोरम पे नाम डालोगे तो उसका पुराना नाम लैक्टेरियस करके आपको मिल सकता है. तो फिर आता है स्पोर कलर. अभी बहुत सारे मशरूम ना सेम दिखते हैं, पर अगर बहुत सारे फीचर्स सेम है तो व्हाट इज वन फीचर विच कैन हेल्प यू इज द स्पोर कलर. तो ये है द गिल्स ऑफ मैच्योर्ड मशरूम्स. और मैं व्हाई एम आई सेइंग मैच्योर्ड मशरूम्स, तो पहली बात तो ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हर एक, जैसे इंसान का प्यूबर्टी होता है ना, हर एक इंसान अपने टीनेज में प्यूबर्टी अचीव करता है, तो तभी उसका रिप्रोडक्टिव organs they start functioning on their peaks, right, in somewhere in their puberty. Similarly, mushroom, when they are matured, they give out the color of their spores through their gills. So अगर एक immature mushroom है, जैसे कि ये अगर आपको दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है अगर आपको, तो ये अगर टाइप और ये मशरूम कैप है ना, तो ये कैप डेफिनेटली ऐसे खुलेगा, राइट. तो ये अगर पूरा ऐसे खुलता है ना, उसके बाद उसका गिल्स से स्पोर्स निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो मैच्योर्ड वो तब भी होएगा जब भी इसके गिल्स पे उस स्पोर का कलर है, मतलब इतने स्पोर निकल गए हैं कि वो गिल का कलर अभी जो स्पोर का कलर है वो हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिल्स ना ब्लैक कलर के हो गए. तो ये पैनेवोलस मशरूम के होते हैं ब्लैक स्पोर्स. तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर हो गया. अभी ये किसी मशरूम के स्पोर्स निकले ही नहीं है और आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया, तो इफ द आइडेंटिफायर इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू आईडी बिकॉज उसका स्पोर रिलीज नहीं हुआ है, वो इमेच्योर है, तो शायद आपको उसका पॉजिटिव आईडी नहीं मिलेगा. तो व्हेन यू वांट टू चेक द स्पोर कलर, it has to be a matured mushroom, and rather you should always think about consuming or working on a mushroom once it is matured, so you can get the exact identification. ठीक है जी. तो ब्लैक स्पोर्स होते हैं पैनियोलस के, मोटल गिल्स हो गए. फिर इस फोटो में आपको अगर इसमें ग्रीन थिंग्स दिख रहा है तो आपको सही दिख रहा है. ग्रीन स्पोर्स होते हैं क्लोरोफाइलम मॉलिब्डाइट्स के. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एक जगह पे वी गॉट कि पॉइजनिंग का केस हुआ था. तो क्लोरोफाइलम मॉलिब्डाइट जो ग्रीन स्पोर्ड मशरूम होता है ना, ये बहुत पॉइजनस होता है. उसके एडिबिलिटी पे मैं थोड़ा और कमेंट करूंगा आगे की एक स्लाइड में, बट बेसिकली स्पोर कलर अगेन, अगर ग्रीन कलर के स्पोर्स दिख रहे हैं आपको इस टाइप के मशरूम का, तो वो एक पॉइजनस मशरूम है. ठीक है. देन डार्क ब्राउन स्पोर्स भी होते हैं, लैक्रीमाइरिया लैक्रीमाबुंडा करके नाम है इसका. देन यू हैव पिंक स्पोर्स, दिस इज अगेन वोल्वोप्लूटियस. तो उसका स्पोर प्रिंट लिया था मैंने, देखो एकदम सूरज की किरणों जैसा दिख रहा है. तो वोल्वोप्लूटियस का पिंक स्पोर्स रहता है, डार्क पिंक स्पोर्स रहते हैं. क्लोरोफाइलम ब्रुनियम जो मैंने बताया था ना, बेस से वाइट हो जाता है, उसके देखो कितनी ब्यूटीफुल वाइट कलर का स्पोर प्रिंट है, ये ली थी मैंने. और क्लोरोफाइलम मॉलिब्डाइट्स का ग्रीन कलर का है. तो जो ग्रीन कलर का क्लोरोफाइलम का स्पोर प्रिंट है ना, वो पॉइजनस होता है. ठीक है जी. फिर ये दिस इज माय मोस्ट फेवरेट फाइंड टिल नाउ, पिंक स्पोर्स ऑफ एंटोलोमा सबजीनस लेप्टोनिया. ये मुझे वायनाड में मिला था. तो ये पूरा ऐसा ब्लू कलर का रहता है, एकदम शिव जी कृष्णा भगवान का कलर है, और यहाँ अंदर एकदम ऐसे पिंक कलर के बढ़िया से स्पोर्स दिखते हैं. तो उसकी वजह से बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे मशरूम. सो एंटोलोमा is another genus
and it is also called pink gills because it has pink spores. So pink spores भी रहते हैं. Then there are dark purple to dark purple spores, Stropharia rugosa annulata. ठीक है, इसको किंग स्ट्रोफेरिया बोलते हैं, इसको किंग स्ट्रोफेरिया. तो उसके पर्पल स्पोर्स रहते हैं. फिर जिम्नोपाइलस हो गया तो उसके ऑरेंज स्पोर्स रहते हैं. तो आप देख रहे हो कि मतलब कैप से लेके स्टाइप, फिर गिल्स, फिर गिल का अटैचमेंट, गिल का कलर बिकॉज ऑफ द स्पोर्स, बेस, सबस्ट्रेट, ऑल ऑफ दिस आर आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ अ मशरूम. तो when you are documenting it, all of this is the reason why you document all this is so that you know that you are working with the mushroom which you want to work with. आप और कोई सी चीज को अपना मशरूम मान के नहीं चल रहे हो. ओके, फिर आते तो ये था अभी तक अगैरिक के बारे में. अब हम पॉलीपोज पे आते हैं. ये उतना बड़ा सेक्शन नहीं है. तो पॉलीपोज ऊपर से तो सारे सेम ही दिखते हैं. सो व्हाट इज अबाउट पॉलीपोज व्हिच हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? ओके, this is a polypore which is forms fomentarius. This was literally like 3 feet wide. मतलब अगर बारिश होता ना तो मैं इसके नीचे बैठ के छुप सकता हूँ. एटलीस्ट मेरा अपर बॉडी, उतना बड़ा मशरूम था ये. हिमाचल प्रदेश में मिला था. ये है ना एक, अभी ये दोनों मशरूम दोनों पॉलीपोज है, ठीक है, दोनों ब्रैकेट टाइप है, पर दोनों अलग है. काफी सारे लोग बोलेंगे यार ये तो सेम ही है, अलग अलग लाइफ इसका डिफरेंस है, पर एक्चुअली दोनों डिफरेंट है. इसमें से एक स्टीरियम है और एक ट्रमिटीज है. तो डिफरेंशिएट कैसे होता है वो? तो पॉलीपोज कैन समटाइम्स बी आइडेंटिफाइड टू जीनस लेवल. मतलब जैसे होमो सेपियंस में होमो है तो वैसे ही जीनस लेवल बाय देयर अंडरसाइड्स, मतलब नीचे से कैसे दिखते हैं. तो ये स्टीरियम का ऊपर का साइड है और ये नीचे का साइड है. तो आप देख रहे हो कि ये नीचे के साइड में ना आपको कोई भी पोर नहीं दिख रहा है. सो इट इज द पोर्स आर नॉट विजिबल, सो इट इज स्टीरियम. दिस इज लाइक एन आइडेंटिफिकेशन फीचर. अगर इसकी जगह पे मैं ट्रमिटीज देखूं ना तो ट्रमिटीज के अंडर साइड पे मेरे को पोर्स दिखेंगे. अभी ये पोर्स की साइजेस भी ना बहुत मायने रखती है. आई टेल यू व्हाई. ये है गैनोडर्मा कल्टीवेट किया हुआ है जो मैंने. गैनोडर्मा स्पीशीज का अंडरसाइड है. इसका पोर्स देखो, इट इज स्मॉलर देन ट्रमिटीज बट इट इज स्टिल विजिबल टू द नेकेड आई. ओके, तो ये गैनोडर्मा का अंडरसाइड हो गया. फिर ये माइक्रोपोरस है. जो लोग लैपटॉप में शायद दिख रहे हैं प्रेजेंटेशन, उनको पोर्स दिख रहे होंगे. मोबाइल फोन्स वालों को ये शायद नहीं दिख रहा होगा, पर इसमें भी पोर्स विजिबल टू द नेकेड आई है बट दे आर वेरी स्मॉल. तो इसका नाम पड़ गया माइक्रोपोरस. ठीक है, सो दिस इज अगेन अनदर मशरूम. तो माइक्रोपोरस का अंडरसाइड में भी पोर्स है पर द साइज ऑफ द पोर्स इज वेरी डिफरेंट. फिर थोड़ा वियर्ड अंडरसाइड्स भी होते हैं किसी किसी के ना, जैसे अर्लिएला स्काब्रोसा है. तो ये तो जैसे ही नीचे आप उल्टा करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, पर ऊपर से ना ये काफी सब सेम ही दिखते हैं एट सम पॉइंट. फिर है हेक्सागोनिया स्पीशीज. तो ये भी अंडरसाइड ही है. ये आपको दिख सकता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6. अगर मैं ये उसको देखूं तो 6 साइड्स दिख रही है इसकी. तो इसलिए इसका नाम हेक्सागोन से हेक्सागोनिया हो गया है. तो जब तक अंडरसाइड नहीं देखोगे ना पॉलीपोर की, आपको लगभग सब सेम ही दिखेंगे. तो ये जस्ट एक फोटो है. ये एक हमारा वायनाड का एक फॉरेजिंग वॉक था, उसमें मिले थे. तो आप देख सकते हो कि इसकी अंडरसाइड अलग है, ये दोनों की अंडरसाइड ऑलमोस्ट सेम है. ये अलग अंडरसाइड है, ये भी अलग अंडरसाइड है. ये एक्चुअली एक सड़ा हुआ गैनोडर्मा है. ठीक है, तो इसको एक्चुअली कंसिडर मत करो. पर ये ट्रमिटीज फ्लैविडा है, ये भी ट्रमिटीज फ्लैविडा है, पर ये ट्रमिटीज बेटुलिना है. तो ये मुझे पता इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसकी अंडरसाइड अलग है. इसका देखो गिल, इसको गिल्ड पॉलीपोर भी बोलते हैं बाय द वे, क्योंकि इसमें गिल्स भी है और ये खुद एक पॉलीपोर है. सो देयर आर सम मशरूम्स जो ना तो अगैरिक में आप बोल सकते हो ना तो पॉलीपोर में बोल सकते हो, फिर भी कंसिडर इसको पॉलीपोर में करते हैं, पर इसे फिर भी गिल्स है. सो सम मशरूम ब्रेक रूल्स. फिर ये हो गया था पॉलीपोज. अब हम आते हैं पफ बॉल्स पे. तो पफ बॉल्स आर बेसिकली दिस राउंड लाइक स्ट्रक्चर जिसका क्रॉस सेक्शन आप निकालोगे अंदर कैसा दिखता है, उससे मालूम पड़ सकता है कि ये पफ बॉल है
नहीं है, और अगर है तो एडिबल है कि नहीं है। तो अभी ये जैसे क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड वाले पफ बॉल का इसमें, तो ये अगर पूरा व्हाइट है ना तो दिस इज एडिबल। अभी ये व्हाइट से धीरे धीरे येलो होगा, येलो से ग्रे, ग्रे से डार्क ग्रे, डार्क ग्रे से ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक से ग्रीनिश ब्लैक ऐसा शेड आएगा। तो अगर ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया और ये येलो हो गया है ना, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नाउ इट्स नॉट एडिबल एनीमोर। एंड मैंने बहुत सारे पफ बॉल्स खाए थे जब मैं हिमाचल में था, और मैं सबको चेक कर खोल के चेक करता था कि भाई ये खा सकते हैं कि नहीं, और लगभग मैंने से 25-30 इतने पफ बॉल्स इकट्ठा किया था, फिर उसको काट के तवे पे गरम करके सैंडविच में डाल के खाया था। तो बहुत टेस्टी होता है, एनर्जी भी फील होता है कि मतलब कुछ खाया है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट चेक देम आउट। So a puff ball can be identified with their cross section only. Some puff balls will have this outer edge will be thick, which will not be thick. So this is again an identification feature. एक है कैल्वेशिया जाइजेंटिया करके, मुझे भी एक कैल्वेशिया मिला था हिमाचल में। तो ये बहुत बड़े पफ बॉल्स होते हैं, कुछ लोग तो इनको एज अ पिज्जा का बेस भी यूज करते हैं। बट अगेन अगर ये कैल्वेशिया अंदर से येलोइश हो गया है ना तो उसको मत खाना, अगर व्हाइट है तो खा सकते हो। तो व्हाई इज क्रॉस सेक्शन सो इम्पोर्टेंट इन पफ बॉल्स, ये तो आपने जान लिया एडिबिलिटी देखने के लिए, पर काफी बार ना जो स्टिंग हॉर्न है, ये एक्चुअली स्टिंग हॉर्न का एग है, उसको काटा तब मालूम पड़ा, वरना आपको लगता है शायद पफ बॉल है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि वो जो ग्लीबा का स्ट्रक्चर होता है ना वो ये रहा, तो ये टेक्निकली धीरे धीरे ग्रो आउट होएगा। सो इट इज नॉट अ पफ बॉल, बट क्रॉस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू ऑलवेज कंफर्म इट। उसके बाद है स्क्लेरोडर्मा सिट्रिनम। तो ये देख सकते हो उसका आउटर एज कितना थिक है, इसके क्रॉस सेक्शन से आपको मालूम पड़ेगा, और अंदर से ब्लैक है। अभी ये जो है ना, दिस मशरूम इज ऑल्सो थोड़ा कॉन्स्पिरेसी टाइप, क्योंकि इंडिया में इसको खाते हैं और अमेरिका साइड इसको इनएडिबल कंसिडर किया जाता है। मैंने पर्सनली तो खाया नहीं है, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट, बट पता नहीं क्या है, इट कैन बी कि थोड़ा डिफरेंट स्पीशीज है, पर सीक्वेंसिंग से भी दोनों काफी सिमिलर आइडेंटिफाई हुए हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन भी है, बट हमारे लिए तो आइडेंटिफिकेशन की मेन बात है। तो आप देखो कि क्रॉस सेक्शन, अगर आप पफ बॉल का जानना चाहते हो आइडेंटिफिकेशन, देन द क्रॉस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now we are almost at the end of the presentation. मैंने 2-3 मशरूम मिस्टेक्स जो हो जाती है लोगों से, जिससे एडिबल मशरूम सोच के पॉइजनस मशरूम खा लेते हैं, उसके बारे में 2-3 मशरूम डाले। प्लीज सी दिस, क्योंकि बहुत काम की चीज है। So first is Pleurotus austriatus versus Omphalotus nidiformis. अभी ये Omphalotus जो है ना वो भी बायोल्यूमिनेसेंट होता है, ठीक है, पर आप ये देखो कि दोनों काफी सेम दिखते हैं। इसके भी डिकरेंट गिल्स है, इसके भी डिकरेंट गिल्स है। तो फर्क कैसे पता कर सकते हो? तो Omphalotus nidiformis are bioluminescent which are sometimes faint, so you can check that at night. There are minor cap color differences, but they can be misleading. However, Omphalotus will have a dark brown patch on top of the cap in most cases, जो मेच्योर स्पेसिमेन में होता है। तो अगर छोटा स्पेसिमेन दिख रहा है ना आपको, तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मत खाना उसको, क्योंकि वो हो सकता है वो ऑयस्टर समझ के ओम्फालोटस खा रहे हो, ठीक है। और अगर आपने खा लिया है तो आपको वॉमिटिंग होगी, तो आप मान जाना कि आपने ऑयस्टर नहीं खाया है, आपने ओम्फालोटस खाया है। उसके बाद आते हैं अगेन जो मैंने डिस्कस किया है, मैक्रोलेपियोटा प्रोसेरा एंड क्लोरोफाइलम मोलस्कॉइड्स। तो अभी इसमें आपको बहुत ध्यान से दिखेगा हर एक चीज। तो ये मैक्सिमम वर्ल्ड में पॉइजनिंग केसेस है ना इस मशरूम के, सबसे ज्यादा है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इसके होते हैं। तो फटाफट फीचर्स देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या। देखो ऊपर से तो मोटा मोटा सेम ही लगते हैं, पर अगर आप इसका स्टाइप देखोगे तो स्नेक स्किन पैटर्न दिखेगा मैक्रोलेपियोटा का, इसमें आपको स्मूथ दिखेगा। फिर मेच्योर स्पेसिमेन देखो तो ग्रीन कलर का स्पोर्स डिपॉजिट की वजह से ग्रीन गिल्स दिखते हैं, इसके फिर भी व्हाइट ही है, ठीक है। इसका जो एनुलस होता है ना वो थिक रहता है और इसका काफी थिन रहता है, जो एक्चुअली पिक्चर में विजिबल नहीं है, बट द बेस्ट थिंग टू नो इज द स्पोर कलर, ठीक है। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि इसका क्रोलोफाइलम मोलिब्डाइट्स का ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है।
कॉस्मोपॉलिटन तो नहीं बोल सकते, पर एटलीस्ट इट इज फाउंड इन ऑल द ट्रॉपिकल रीजन्स. मतलब मैंने इसको अहमदाबाद में भी देखा है, मैंने इसको बेंगलोर में भी देखा है, इसको केरला में भी देखा है. तो वो जो पूरा ट्रॉपिकल पट्टा है ना, वो पूरे पे, ठीक है. मैक्रोलेपियोटा से कंफ्यूज मत करना इसको, क्योंकि अगर आपने क्लोरोफाइलम मोलिब्डेट्स खा लिया तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो जाएगा, वॉमिटिंग, डायरिया 1 से 3 घंटे बाद भी हो सकता है. तो मतलब खा के खुश हो गए कि खा लिया, उसके बाद पता चलेगा कि ये तो लोचा हो गया. तो उसका भी ध्यान रखना है. और एक्चुअली अभी रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई है जो ऐसे माइक्रोफाइल्स नहीं की है. इट इज नॉट अ साइंटिफिक रिसर्च, बट दे फाउंड आउट कि अगर हम क्लोरोफाइलम मोलिब्डाइट्स को 80 डिग्रीज प्लस पे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक पकाते हैं तो इट एक्चुअली टर्न्स एडिबल. मतलब होता ये है कि उसमें जो भी पॉइजनिंग सब्सटेंसेस है वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं हीट से. तो देयर आर कम्युनिटीज इन इंडिया हु स्टिल ईट दिस, बट सिंस इफ इट इज नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली तो आपको पॉइजनिंग हो सकता है, और इसीलिए इसको अभी भी पॉइजनस मशरूम ही कंसिडर किया जाता है, और इसकी एडिबिलिटी स्टिल इन डिबेट. इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक. तो बहुत बहुत ध्यान रखना. फिर है रसुला और कैंथ्रोसाइब विरोसा. ठीक है, तो रसुला जो डिप्रेस कैप था, जो सबसे सेकंड स्लाइड में लाल कलर का मशरूम था, वो रसुला हो गया. ठीक है, which not all rasulas are edible, but some are, and they are very tasty. And this is Cantharocybe virosa, which is a poisonous mushroom. ठीक है. So एक तो बात है कि Cantharocybe virosa के ना gills subdecurrent होते हैं. If you see this properly, gills are running down, which is not the case with rasulas. इनका जो कैप होता है ना, उस पर आप हाथ घुमाओगे तो आपको वेलवेटी लगेगा. रसुला में आपको वेलवेटी कैप नहीं मिलती है. और दूसरा, रसुला का एक फीचर है कि आप रसुला को हाथ में लेके जोर से दीवार पे मारोगे ना तो वो पूरा क्रम्बल हो जाता है. तो दैट इज अगेन एन आइडेंटिफिकेशन फीचर. डेफिनेटली अभी क्रम्बल हो गया तो खाने का तो मजा नहीं आएगा, पर हाँ आपकी जान बच जाएगी. ठीक है, तो ये बात है. तो लुक अलाइक मशरूम्स में भी अगर आप ध्यान से उसको देखो तो आपको डिफरेंसेस दिख सकते हैं. And this is the last and the most funny one, not funny but worth knowing, because काफी सारे लोग हैं जो मशरूम्स में स्पिरिचुअल या रिक्रिएशन कुछ सीख करते हैं, तो स्पेसिफिकली सिलोसाइब मशरूम्स ढूंढने जाते हैं. तो इनमें ये है कि ये सिलोसाइब साइनेसेंस जो राइट साइड पे है वो तो साइकोएक्टिव होगा, पर ये लेफ्ट साइड पे जो है ना गैलरीना मार्जिनाटा, दे आर कॉल्ड डेथ बेल्स. लिटरली इसको खा के आप मर सकते हो, और वो बहुत सिमिलर दिखते हैं और अपेरेंटली काफी पास भी उग जाते हैं. तो गैलरीना मार्जिनाटा लकड़ी पे उगता है, पर अगर सॉइल में डेब्रिस पड़ा हो ना लकड़ी का तो उसमें भी दे कैन ग्रो. ओके, so let's see the differences. Spores of Galerina marginata are rusty brown to orange, whereas Psilocybe के blackish to purple, blackish brown to purple spores रहते हैं. इनका जो स्टाइप towards the base है ना वो black हो जाता है. ठीक है, पर इनका स्टाइप का कलर चेंज नहीं होता है. If you bruise this mushroom तो उसका स्टाइप मतलब जहां से ब्रूज होगा वहां से वो ब्लू हो जाएगा, which is because of the oxidation of the compounds. अगर आप गैलरीना मार्जिनाटा खाओगे तो आपको सीवियर abdominal pain, vomiting, diarrhea रह सकता है. Damage, it can damage the liver, kidney failure भी हो सकता है, and as the name suggests उसका common name है death bells, तो उससे मौत भी हो सकती है. तो प्लीज काफी ध्यान से फॉरेजिंग करिए. काफी सारी चीजें होती है फॉरेजिंग में आपको समझने की, जो हमने आपके साथ शेयर करने की ट्राई की है. तो by this we are almost at the end of the presentation. This is again the tips which I'm sharing with you. आप इसका फोटो ले सकते हैं. तो बस ये हो गया. क्वेश्चन आंसर करें.
यस, आपके चैट बॉक्स में शायद दिख रहा होगा, वहाँ ही कई ऑडियंस ने डाला है, दिख रहा है वहाँ से? मैं चेक करता हूँ। ओके, Are there identification guidebooks you would recommend specific to India? उसके ऊपर भी एक मिनट। What is difference between Coprinus comatus and Podaxis pistillaris? अच्छा, Coprinus comatus और 133 गुणवंत वाघेला ने पूछा है। Podaxis pistillaris specifically desert type terrain में grow होता है, और Podaxis pistillaris ना it does not turn into ink when it will become matured, जबकि Coprinus comatus prefers soil as a substrate and it turns into ink. So Podaxis pistillaris नहीं था। दूसरा Podaxis pistillaris में ना आपको काफी cracked caps दिखेंगे, ठीक है, और I think Podaxis pistillaris पूरा खुलता नहीं है, वो ऐसे का ऐसे ही रहता है, जबकि Shaggyman है या Coprinus comatus है वो थोड़ा सा ओपन होता है। So these are some differences. उसके बाद है other identification guidebooks you would recommend specific to India. Joel Alex का है identification guides। जब मैं नुवेदो में था तब हम लोग ने भी मैंने भी उनके साथ एक गाइड पे काम किया है, तो वो आपको नुवेदो के वेबसाइट पे मिल सकता है। उसके सिवा there are some books but a lot of people they don't recommend guides। उसका रीजन ये है क्योंकि गाइड्स में जो नाम होते हैं ना वो मशरूम के नाम काफी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उनका रिवीजन होता रहता है, माइक्रोस्कोपी से डीएनए सीक्वेंसिंग से उसका रिवीजन हो जाता है, तो मशरूम के नाम भी बदल जाते हैं। तो अगर आप नाम सीख कर रहे हो तो नाम के लिए नहीं है, बट स्पेसिफिकली अगर आपको फीचर्स के बारे में जानना है ना, तो फीचर्स के बारे में ऐसी कोई गाइड तो नहीं है जो आपको सब कुछ बता देगा, बट द इंटरनेट इज द बेस्ट प्लेस। एंड अगर आपको सही में आइडेंटिफिकेशन सीखना है तो जैसे मैंने कैसे सीखा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला है नहीं इसका। तो फेसबुक ग्रुप्स है जहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, ठीक है, तो वो लोग आप मशरूम का फोटो पोस्ट करो, ठीक है, फिर उस पे से आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। वो आइडेंटिफिकेशन मिलने के बाद आप उस मशरूम के बारे में पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका कैप कैसा है, उसका स्टाइप कैसा है। साइंटिफिक पेपर्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें हर एक चीज बहुत डिटेल में लिखी होती है, साइजेस से लेके फीचर्स से लेके सब कुछ। तो वैसे करके आपको मालूम पड़ सकता है, बट डेफिनेटली देयर आर फेसबुक ग्रुप्स। मैं फेसबुक ग्रुप से सीखा हूँ, और अगर आपको इंडियन टोडस्टूल के बारे में मालूम है तो इंडियन टोडस्टूल इज लाइक माय मास्टर इन दिस। तो मैंने उसको बहुत परेशान किया, उसको परेशान कर करके सवाल पूछ के किया, तो at some point now also I can share my knowledge with everyone, which is very much accurate. So identification is a self-learning process till now. If you want specifically Joel Alex, I can send you this presentation because it's a free presentation और मैं दे सकता हूँ। तो अगर आपको presentation चाहिए तो आप प्लीज मेरे साथ connect करना, मैं आपको presentation भी दे दूंगा। बाकी अगर आपको फिर भी एक बुक सजेस्ट करनी है तो आई विल सजेस्ट यू फंगल डाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये बुक है, अगर आप फंगल डाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स इतना लिखोगे ना तो आपको बुक्स में सजेशन में आ जाएगा गूगल पे, तो यू कैन डाउनलोड दैट। इज पोडाक्सिस एडिबल? पोडाक्सिस पिस्टिलारिस एडिबल तो है, ऐसा मुझे मालूम है, पर अगर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ किसी को भी तो आप उसको गूगल करिए और खुद खाइए। पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑलवेज से यस टू समवन हु इज आस्किंग फॉर एडिबिलिटी। द रीजन बीइंग कि कुछ मशरूम्स मैं खा सकता हूँ और शायद कोई और नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके गट का जो सिचुएशन है, उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिचुएशन है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू एंड फॉर मी। तो वो चीज मुझे नहीं हो पाएगी। जैसे कि कोई लोग तीखा नहीं खा सकते ना, एकदम वैसी सिंपल सी बात है। तो मैंने ये पढ़ा था कि शैंटरेल मशरूम विच इज एडिबल एंड लोग बहुत ही खुशी से उसको फॉरेज करते हैं जब उसका सीजन आता है, बट लोग
इफ यू समवन ओवर एट दैट मशरूम और उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया था, ठीक है, और उनका वो मशरूम फेवरेट था पर फिर भी वो हो गया था, तो ये सब मैंने काफी मतलब फोरम्स में ये सब पढ़ के मैं आपको बोल पा रहा हूँ. बट सिंपली इफ यू आस्क मी yes or no, yes, Podaxis is edible, but I would always say that when you eat a mushroom, आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ठीक है. और अगेन ऑलवेज ईट अ मशरूम व्हेन यू हैव कंप्लीट स्पीशीज लेवल तक का आईडी, जीनस नहीं, स्पीशीज लेवल तक का आईडी हो आपके पास, ठीक है. Should we only ask questions related to identification industry related also regarding setup or something? आज के प्रेजेंटेशन देखो, we have already 50 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो आज आइडेंटिफिकेशन पे ही रखो प्लीज. सर प्लीज टेल अबाउट कॉर्डिसेप मिलिटरीज. क्या सर उसमें ब्राउन राइस के अलावा दूसरा कोई सबस्ट्रेट ऐड कर सकते? अच्छा है, अरे ये तो कल्टीवेशन का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, ब्राउन राइस के साथ और कोई प्रोटीन रिच ग्रेन यूज के बारे में आप सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोया है. कलरफुल मशरूम इज प्रेजेंट इन प्लूरोटस स्पीशीज. हाँ, बहुत सारे प्लूरोटस में डिफरेंट टाइप के मशरूम्स है. प्लूरोटस जामुर इज पिंक ऑयस्टर, प्लूरोटस सिट्रिनोपिलियाटस इज गोल्डन ऑयस्टर, Pleurotus florida is white oyster, Pleurotus pulmonaris is Indian oyster which is a little brown in color, Pleurotus austriatus का blue version भी है, light grey version भी है. तो काफी सारे है और सारे Pleurotus edible है. Pleurotus tuberregium करके भी है जिसकी morphology is very different. Pleurotus tuberregium, इसकी morphology is very different from other Pleurotuses, पर वो भी edible है and it's also very medicinal. बोधिसत्व पूछ रहे हैं, कैन यू टेल अस अबाउट फ्लाई एगारिक मशरूम. तो फ्लाई एगारिक मशरूम एसेंशियली अमेनिटा मस्कैरिया है. Amanita muscaria is a mycorrhizal mushroom. It grows in association with trees, especially in high altitude areas. Pine trees के पास ज्यादा मिलते हैं और काफी क्रिसमस का फोकलोर भी उसके आजू बाजू है. It is a mushroom which is also considered to be very spiritual and holy. उससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, बट क्रिसमस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि वो क्रिसमस ट्री होता है और उसके आजू बाजू व्हाइट और रेड कलर के गिफ्ट्स रखे जाते हैं. इट एसेंशियली इज डिपिक्टिंग कि वो जो ट्री है वो पाइन ट्री है और वो जो गिफ्ट्स है ना व्हाइट और रेड कलर के, इट इज एसेंशियली अमेनिटा मस्कैरिया. It is a mushroom which is known to give you a lot of wisdom, but everyone can't take it also. तो काफी सारी चीजें उसके बारे में, गलत चीजें मैं बताने नहीं चाहता, तो बस उतना ही बता पाऊंगा अभी के लिए. बोधिसत्व जी धन्यवाद. How many species edible in Pleurotus? Pleurotus is a fully edible genus as far as I know, but again, as I said कि आप प्लूरोटस के बारे में मत पूछो, आप पूछो प्लूरोटस फ्लोरिडा एडिबल है कि नहीं, प्लूरोटस जामुर एडिबल है कि नहीं, प्लूरोटस सिट्रिनोपिलियाटस एडिबल है कि नहीं. ऐसे प्लूरोटस बोलोगे तो प्लूरोटस इटसेल्फ कुछ 200 टाइप के ऑयस्टर हो गए और लोग ब्रीडिंग करके और टाइप के भी ऑयस्टर्स बना रहे हैं, तो सवाल ही इनकम्प्लीट है. अक्षय सर पूछ रहे हैं फॉर मशरूम आइडेंटिफिकेशन मुक डीमिस्ट्री. Yeah, mushroom. David Arora is an amazing identifier and a great scientist. Mushroom demystified आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैंने सजेस्ट नहीं किया. शेख सर. हेलो व्योम भाई. आपको बोलूंगा, मुझे सर मत बोलिए. आपका जो सेशन था वो बहुत ही वंडरफुल रहा. जो बेसिक लेवल होगा वो सारा क्लियर होगा आइडेंटिफिकेशन के बच्चों के लिए. मेरा सर एक ही क्वेश्चन था कि जैसे कि आप आइडेंटिफिकेशन पर काम कर रहे हो ना जी, तो अभी तक के डेटा में ऐसी कोई मशरूम स्पीसीज अवेलेबल है जो इंडिया में पाई गई हो और दूसरे कंट्रीज में या दूसरे लेवल में पाई ना गई हो? है ऐसी कोई स्पीसीज? एक है डंग पे ग्रो होता है, पोरोनिया नगर होलेंसिस. अच्छा, ओके. मैं उसका नाम चैट में लिखता हूँ. पोरोनिया नगर होलेंसिस. फिर हाइग्रो साइनट्राजेंसिस, सिलोसाइड केरालेंसिस. ये 3 तो मैं पक्का बोल सकता हूँ जो इंडिया में है. रासुला के काफी सारे हैं स्पीशीज, 2-3 है जो इंडिया में मिलते हैं. ओके सर, ओके.
पर ये हाँ ये 3 तो पक्की बात है कि इंडिया के ही है। मेरे को उसका ठीक है, एग्जैक्ट पूरा नाम डिटेल में याद नहीं आ रहा अभी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। वेलकम अक्षय भाई। तो कोर्डिसेप्स मिलिटारिस को हम पैरासाइट मशरूम बोल सकते हैं क्योंकि वो एक इंसेक्ट के ऊपर ग्रो होता है। आप बोल सकते हो उसको पैरासिटिक मशरूम क्योंकि वो उसके ऊपर ग्रो होता है, पर स्पेसिफिकली ना मशरूम की एक टाइप ही है जो इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करती है और उन सबको एंटोमोपैथोजेनिक बोला जाता है। तो आप उसको एंटोमोपैथोजेनिक बोलोगे तो साइंटिफिकली आपको नैरो डाउन करने में ज्यादा इजी होगा। मिताली जी, सर यू नो सिंपल मेथड विच कैन कलेक्ट देयर एक्सट्रैक्ट इन लैब फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। देखो आज का सेशन इस पे है नहीं, बट बेसिकली आप चाय बनाते हो ना, तो चाय में आप किसी चीज को पानी में उबालते हो और फिर उस चीज को साइड में हटा के जो उबली हुई चीज चाय बन जाती है उसको पी लेते हो ना। सो एसेंशियली दैट इज ऑल्सो लिक्विड एक्सट्रैक्ट। आप जब चाय बनाते हो तो वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप और रिसर्च करना या तो फिर अलग से हम बात करेंगे इस आइडेंटिफिकेशन पे बात करते हैं आज। बट सर वी वांट टू नो फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन, वो तो मुझे खुद भी पढ़ना पड़ेगा। बोधिसत्व जी पूछ रहे कुकुरमुत्ता एंड मशरूम डग बाइट डॉग, एनी एसोसिएशन बिटवीन द टू, एनी अनदर रिलेटेड क्वेश्चन, आर देयर मशरूम डग बाय पिग। तो ये पिग वाला जो है ना, these are basically truffles. तो truffles are considered edible, but they are mass of mycelium under the ground. ठीक है, तो ये पिग्स और डॉग्स जो खोद के निकालते हैं ना, वो ट्रफल्स होते हैं जो यूरोप में आपने पढ़ा होगा होता है। कुकुरमुत्ता तो नाम मिला है मशरूम्स को नॉर्दर्न इंडिया में, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे डॉग टॉयलेट करेगा वहां पे मशरूम आएगा। ऐसे करके मशरूम की मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं की, ये बात है। पर अभी जैसे कि हम लोग इनोवेट कर रहे हैं, न्यूवे बायोटेक इज इनोवेटिंग सो मेनी थिंग्स वर्किंग विद मशरूम, सो वी ऑल नो कि उसके बहुत सारे मेडिसिनल, गोरमे से लेके मेडिसिनल से लेके स्पिरिचुअल सारे बेनिफिट्स हैं मशरूम के अंदर। तो दैट इज व्हाट इट इज। I don't think there are any more questions. Sagar? Yeah, perfect. All questions will be solved in future. Good evening to everyone. My name is Sagar Patel, founder of New Biotech. On behalf of our entire team, I extend to my heartfelt thanks to everyone who made today's Mushroom Awareness Drive a success. First, a big thank you to our dedicated team members Akshay, Shikha, Hardik, Pratiksha, and Gaurang, whose efforts made this event possible. A special thanks to my younger brothers, Mr. Vyom Bhatt, for volunteering this time and sharing valuable insight with the community. Your contribution truly enriched the session. To all the mushroom enthusiasts and participants, thank you for joining us and showing your passion for sustainable and nutritious food solution. It is your curiosity and support that fuel our mission, create a sustainable environment through innovative solution. We aim to organize more sessions like this to spread awareness about the benefit of mushroom and their role in sustainability. If you have any query or are interested in learning more about our technology and initiative, feel free to reach out to our team. We are always eager to connect with fellow mushroom lovers. We will be sharing feedback link and WhatsApp group link shortly, so you can stay connected and updated about our initiative. Additionally, if anyone is interested in collaborating with us, sponsoring our activities and supporting with through CSR funding, we would love to hear from you. Your expertise and support can help us to grow this mission further. Once again, thank you for being a part of this drive. Let's enrich our lifestyle together, take a step forward towards a sustainable future with New Way. Wishing you all a great evening and fresh start tomorrow with New Way. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sagar bhai. Thank you, Akshay bhai, for giving me this platform so I can share more knowledge with the people of our country. Thank you so much.